session today. So before we start, I am just going to briefly tell you what are we going to do in this session. Basically, if you can see here, these are the objectives of today's session, which were already shared with you all. We have also shared a few MCQs. Did you all receive the MCQs? Could you write in your chat boxes? So we're going to be interactive and talking in the chat boxes. So whatever you want to write, you can just write it in your chat boxes. I hope you've actually attempted those MCQs, because it's very important to attempt those MCQs yourself so that you have an idea of how you're learning and if your knowledge is actually improving. We have seen the results of those MCQs, and I'm sure these results have been shared with you all as well. So did you see the results in your email boxes, or have you seen the scores you have achieved in that MCQ test? Great. So I will not ask you your scores, because I know that 50% of you have actually scored between 10 out of 20 to 13 out of 20, and which is of course not adequate enough to pass. But as we are going to go through this module today, you're going to, I'm sure, be able to attempt those hematology MCQs in a better way. Secondly, just before I start, for those who are new and those who do not know the structure of the MCPS and MRCGP exam, so let me tell you that MRCGP exam consists of MCQs only. The MCQs which I have shared with you, the MRCGP exam has similar MCQs and 200 MCQs which we need to answer to and achieve a reasonable around 60 to 65% score to pass MRCGP exam. And for MCPS, you have two papers, paper 1 and paper 2. The first paper has SAQs, which are short answer questions. So in this session today, we're going to share some cases, and we are going to also learn how to answer those short answer questions and get good scores. And paper 2 of MCPS consists of 100 MCQs, and these MCQs are just like the ones I have shared with you. So basically, MCQs for MCPS and MRCGP are quite similar, and if you study for one exam, you can pass the other exam as well easily. It's just that the structure is a bit different. For MCPS exam, you need to know how to attempt short answer questions as well, and for MRCGP exams, only you need to be good and knowledgeable enough to attempt MCQs. Paper 1 and paper 2 both are of MCQs. Can you all hear me? Am I clear to you? Can you all see me and hear me? Okay, great, Sumera. Right. So could I please have your names instead of your mobile brands, because I would like to take your names and address you with your names, so that whenever you ask something, I can address you with your name. Those who have just joined in, we are able to, we are starting our module today of hematology, and we're going to learn how to attempt MCQs and short answer questions. MRCGP has MCQs only, and MCPS exam has MCQs as well as short answer questions. Walaikum Assalam, Sadaf, Savera, how are you all doing? So let's begin with today's first objective. First of all, whenever you see a hemoglobin, yes, Naila. So before you, we're going to start the next session, you're going to get all the reference books if you've registered for the course, and you're going to get the latest editions of CMDT, which is current medical practice. You're going to get Oxford, the latest edition. You're going to get Swanson Medical for family practice, and any other book which you may need for your exam preparation, you're going to get beforehand, right? So you're going to get all the online books.
So whenever you see a hematology CBC report, these are the things which you look for. ठीक है, एक तो उसमें red blood cells या hemoglobin होता है, ठीक है, then you have TLC जिसको कहते हैं total leukocyte count या WBC count, and then you see the platelets. ठीक है, ये तीन चीजें आप CBC की रिपोर्ट में देखते हो, और CBC की रिपोर्ट में ये तीनों चीजों की इंटरप्रिटेशन you should be knowing so that आपको पता हो कि how to interpret those results into clinical practice. So talking about RBC morphology, सबसे पहले तो आपने quantitatively देख लिया कि कितने numbers हैं, hemoglobin कितना है grams per deciliter, WBC कितने हैं, platelets कितने हैं. फिर एक peripheral smear की result भी आप देखते हो, जिसमें नीचे आपने देखा होगा लिखा होता है microcytic, hypochromic या फिर normocytic, normochromic. तो इन सब चीजों का क्या मतलब है, यू गोइंग टू लर्न कि ये सारी चीजें क्या होती हैं. सो आरबीसी मॉर्फोलॉजी में व्हाट यूजुअल टर्म्स यू कम अक्रॉस, एक तो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक. एक मैक्रोसिटिक होता है, तो बड़े आरबीसीज व्हिच लुक बिगर. माइक्रोसाइट्स, माइक्रो छोटा, ठीक है, सो माइक्रोसिटिक छोटा आरबीसी. एलिप्टोसाइट शेप एलिप्टिकल की तरह, ठीक है. टारगेट सेल एक गोल सेल विथ बीच में जैसे टारगेट की तरह. स्फेरोसाइट एकदम राउंड. एकैंथोसाइट लाइक अ स्टार. सिकल सेल लाइक अ सिकल, ठीक है, एक टूल होता है सिकल, तो सिकल के शेप का होता है. टीयर ड्रॉप लाइक अ टीयर, ठीक है. सो ये सारी चीजें आपको यूजुअली जब आप नीचे उसके पेरिफेरल फिल्म के कमेंट्स देखते हो तो ये सारी चीजें आपको उसमें नजर आती हैं, ठीक है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बेस्ट चॉइस क्वेश्चन कह लीजिए, बीसीक्यू कह लीजिए, एमसीक्यू कह लीजिए. दिस इज ऑन द पैटर्न ऑफ एमसीपीएस एंड एमआरसीजीपी एग्जाम. A 35 years old lady presents with heavy menstrual bleeding for the last 2 years. On examination, she is pale. Which of the following would confirm the diagnosis of pallor? ठीक है, so confirm word है, confirm. इनिशियल टेस्ट नहीं है, डायग्नोस्टिक एक तरह से है क्योंकि कंफर्म कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि डायग्नोस्टिक. सुमेरा, दो जवाब देने की इजाजत निश्ता, एक जवाब देना पड़ेगा. सो सम पीपल आर सेइंग ई, सम पीपल आर सेइंग सी, और इसका जवाब मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने गलत दिया हुआ था, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि आई थॉट कि ये एक ऐसी चीज है जो सबको पता होती है कि अगर एक टेस्ट मैंने कंफर्मेशन के लिए करवाना है, नीना, कंफर्मेशन के लिए करवाना है, तो मैं कौन सा कराऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग, बताइए आप इसमें सस्पेक्ट क्या कर रहे हो. What are you suspecting here? Heavy menstrual bleeding हो रही है तो yes, Manaz, that is right. You're suspecting iron deficiency anemia ना. तो iron deficiency anemia का जो confirmatory test होता है वो होता है ferritin. ठीक है, ferritin के stores आप देखते हैं. That is the confirmatory test for anemia, and that is the first test you should be doing if somebody has microcytic hypochromic anemia on a CBC report. ठीक है, सो फर्स्ट टेस्ट जो आप कराएंगे वो फेरिटिन कराते हैं. आयरन TIBC कराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर चीज के पैसे लगते हैं और पेशेंट पे पैसे चार्ज होते हैं, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा टेस्ट नहीं करवाएंगे जिसका कोई आपको फायदा ना हो. फेरिटिन इज फेयर इनफ. So the case scenario says a 22 years old female presents with lethargy and exertional shortness of breath. Her hemoglobin 2 months back was 9 milligrams per deciliter. This is exactly like a short answer question in the MCPS exam. जो paper 1 में 10 SAQs आते हैं, short answer questions, वो इसी pattern पे होते हैं एकदम exactly, and every question is worth 10 marks. ठीक है, so what questions in the history would you ask? अब बताइए कि इस patient से और क्या क्या सवाल करेंगे. Dietary history, right. डाइट में खाना क्या खाती है, रेड मीट खाती है या नहीं खाती है. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फीमेल्स में और 22 ईयर ओल्ड में क्वाइट पॉसिबल कि शी इज प्रोबेबली लूजिंग ब्लड थ्रू हेवी मेंसेस. एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यस, कि कितना इम्पेयरमेंट होती है. मीन्स यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट symptoms.
फीवर आप लोग कह रहे हैं, वेरी गुड. वेट लॉस, यस. Mohammed Salim, there must be some problem with your connection because other people can hear me clearly. So yes, fever, weight loss, family history of any blood disorder, that is fine. ये आप बिल्कुल पूछेंगे. तो ये सारे सवाल, you're trying to find out a cause for this anemia. ठीक है, दो महीने पहले 9 milligrams का था, so you're trying to find out the cause. Yes, any weight loss, any blood in stool. Blood in stool को क्या कहते हैं आयशा? अगर black color का stool में blood आ रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? मलीना कहते हैं. Absolutely. So मलीना या हेमाटोकीजिया. ठीक है, हेमाटोकीजिया का क्या मतलब होता है? Red blood in stool. Right? So मलीना, हेमाटोकीजिया, menstrual bleeding, any hematuria, और कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही. डाइट क्या खाते हैं? OBGYN हिस्ट्री, प्रीवियस उसमें जो है वो रीसेंट हो सकता है, कोई डिलीवरी हुई हो, कोई पोस्टमार्टम हेमरेज की हिस्ट्री हो, है ना. सो ये सारी चीजें टू फाइंड आउट. हेपेटाइटिस बी सी का बिल्कुल पूछ सकते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री आप ले सकते हो. क्रॉनिक डिजीजेस का पूछ सकते हो. एनी क्रॉनिक डिजीजेस, एनी मेडिकेशन द पेशेंट इज ऑन. यस सुमेरा, यू आर गोइंग टू आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ वर्म्स. बिल्कुल सही है. फिर हम देखते हैं कि एग्जामिन कैसे करेंगे. इन्वेस्टिगेशंस, व्हाट वुड वी ऑफर एंड हाउ वुड वी मैनेज हर. सो एनीमिया में जो सिम्टम्स होते हैं, पेल येलोइश स्किन. नायाब, DS, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? पेल और येलोइश स्किन, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, हेडेक, weakness, shortness of breath, cold hands and feet, chest pain, irregular heartbeat and fatigue. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अनीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है. और इसके अलावा जो आप लोगों ने सिम्टम्स बताए, बिसाइड्स द सिम्टम्स, पाइका का नाम सुना है? व्हाट इज पाइका? एनीबडी, व्हाट इज पाइका? इट इज लाइक ईटिंग क्ले, है ना. यस सुमेरा. तो पाइका और क्रेविंग फॉर आइस, कभी नोटिस किया है कि बहुत किसी को एनीमिया हुआ हो? अमंग so many people we have here, have you ever noticed जब एनीमिया होता है तो उसके साथ बर्फ खाने का दिल करता है, राइट. सो हिस्ट्री ऑफ पाइका या फिर क्रेविंग फॉर आइस, है ना, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं. फिर एज यू ऑल सेड, फीवर, वेट चेंजेस, जैसे टीबी हो किसी को, क्रॉनिक डिजीज हो कोई, सो उसमें भी क्या होता है कि आपको फीवर एंड वेट चेंजेस होंगे, है ना. सो इट कुड, क्रॉनिक डिजीजेस कुड लीड टू एनीमिया. देन न्यूट्रिशनल इनटेक, एज यू ऑल सेड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आप लोगों ने खुद मुझे सारी चीजें बताई, हेमाटोकीजिया, ब्राइट रेड ब्लीडिंग, मलीना. अच्छा, रेजिडेंशियल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स. लेड एक्सपोजर होता है ना, किसी को पता है लेड एक्सपोजर कौन से ऑक्यूपेशन में हो सकता है? कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लेड एक्सपोजर होता है? किसी को पता है? एंड आई हैव एक्चुअली सीन अ पेशेंट लाइक दिस. पेंटर से, बिल्कुल पेंट से हो सकता है. और एक और चीज में भी होता है लेड एक्सपोजर. पेंटर्स के अलावा, मेरा पेशेंट पेंटर नहीं था. माई पेशेंट यूज टू हैव एनीमिया, और बेचारे का बार बार हीमोग्लोबिन ना 6-7 पे आ जाता था. उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे, इतने सारे उसके टेस्ट कराए हुए थे, कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने. एंडोस्कोपी भी हो गई थी, कोलोनोस्कोपी भी हो गई थी, बेचारे के सारे टेस्ट करवा दिए, और स्टिल ही वुड, और उसका हेमरॉइड्स थे तो हेमरॉइडेक्टमी भी कर दी थी ताकि उसको एनीमिया ना हो. स्टिल ही कंटिन्यूड टू हैव, आफ्टर एवरी 3 to 4 months उसका जो है ना हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता था 6-7 पे. When he came to me, he said कि डॉक्टर मैं तंग आ गया हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा के, मुझे समझ नहीं आता, मैं खाता भी हूँ सारी चीजें, मैं गोश्त भी खाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा फिर भी जो है वो ड्रॉप हो जाता है हीमोग्लोबिन. And just one question through which I was able to diagnose his condition was his exposure, to an exposure in terms of his occupation. Inamul Islam, battery related work, you are right. लेकिन इस पेशेंट का था, he was a प्रिंटर था ये. Probably printing press में भी lead यूज होता है ना, होता होगा ना lead यूज वहां पे प्रिंटिंग प्रेस में. So he was a printer. तो
वहां से मुझे लगा कि इसका यस इंक यूज होती है ना सुमेरा, तो ये लेड एक्सपोजर की वजह से, एंड देन आई गॉट हिज लेड लेवल्स और वो टॉक्सिसिटी वाली रेंजेस में थे, तो आई एडवाइज्ड हिम कि किस तरीके से आप अपनी जो जॉब है उसको, उसमें आपको जो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आप प्रिवेंट करना चाहिए. सो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट. एंड देन यू, एज ऑल ऑफ यू सेड, फैमिली हिस्ट्री, कोई अनीमिया की या कोई थैलेसीमिया की, ल्यूकीमिया की, यू नो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये भी आप लोगों ने बताया. मेडिकेशन इनटेक में एस्पिरिन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारे यहाँ कितने सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, सारी जिंदगी यूज कर रहे होते हैं, है ना, और उससे एनीमिया होता है. डीमार्ड्स जो होते हैं, जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज होते हैं, यस, उससे फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है. NSAID से ब्लड लॉस एनीमिया हो सकता है. NSAID कैन लीड टू माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग, ऑकल्ट स्टूल, ऑकल ब्लड पॉजिटिव आ सकता है पेशेंट का. ठीक है, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जब आप एग्जामिन करोगे तो ऑफ कोर्स लुक फॉर द कंजंक्टिवा, लुक फॉर द म्यूकोजा. ठीक है, आपने जो है वो माउथ में देखना है और आपने नेल्स देखने हैं, स्पेसिफिकली नेल्स देखने, एंड लुक फॉर एनी क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि अगर आप, इफ यू आर सस्पेक्टिंग टीबी जैसे, या अगर एनीमिया बहुत सिवियर है तो यू गोइंग टू आल्सो लुक फॉर टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को सिस्टोलिक मर्मर आ सकती है विद सिवियर एनीमिया. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ऑल दीज एग्जामिनेशन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो ये सारे are the signs and a few symptoms of anemia. ठीक है, तो brittle hair loss हो रहा होता है iron deficiency के साथ. Females would say कि बहुत बाल गिरते जा रहे हैं. Cholangitis, spoon shaped nails, glossitis हो जाता है माउथ में. And remember when we were doing last time, हम लोग क्या कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था angular stomatitis की एक reason is iron deficiency, and the second reason जो मैंने आप लोगों को बताई थी angular stomatitis की, what is this second reason, another reason for angular stomatitis? Does anybody remember? हमने जो है वो ENT मॉड्यूल में किया था. ENT के मॉड्यूल में हमने किया था angular stomatitis की another cause of angular stomatitis. Does anybody remember? के भूल गए? Yes, yes सदफ, right. Candidiasis, ठीक है, थ्रश की वजह से भी, candidiasis की वजह से भी angular stomatitis होता है, right? So let's look at the CBC report. ठीक है, ये CBC report में क्या क्या होता है और उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं. तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो you see MCV and MCH and MCHC and packed cell volume. ठीक है, PCV, MCV, MCH, MCHC देखते हैं आप, रेड सेल विथ देखते हैं, डिफरेंशियल काउंट्स एंड WBC काउंट देखते हैं, platelets आप count देखते हैं, and so these are all the things which you should be looking for in a CBC report. ठीक है, and morphology, of course, the morphology. So WHO की anemia classification क्या है कि among females एनीमिया आप उस वक्त कहते हैं अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो 12 का कट ऑफ है, और प्रेग्नेंट में 11 का कट ऑफ है, और मेल्स में 13 का कट ऑफ है. ठीक है, बस इतना अगर आप याद रख लें, दैट इज इनफ. माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के 8 से अगर कम हो तो वो सिवियर एनीमिया होता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. इसीलिए माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एनीमिया के कट ऑफ्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको. आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 13 का कट ऑफ फॉर मेल्स, 12 का कट ऑफ फॉर फीमेल्स एंड 11 का कट ऑफ फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स. ठीक है, सो दैट इज इनफ. MCV, एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBCs. MCH, कितना हीमोग्लोबिन है, वेट कितना है हीमोग्लोबिन का इन दोज RBCs. MCHC, concentration, total concentration कितनी है हीमोग्लोबिन की. वालेकुम अस्सलाम आसिम, how are you doing? And red cell distribution with
इरिथ्रोसाइट के जो साइजेस हैं उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू नो द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पर आप देखो कि नॉर्मल आरबीसीज वर्सेस नॉर्मोसिटिक एनीमिया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया में आरबीसीज कम हो गए लेकिन शेप सही है, ठीक है, कम है आरबीसीज, शेप ठीक है। माइक्रोसिटिक में क्या हो रहा है, कम भी है और छोटे छोटे भी है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम भी है और छोटे भी है, ठीक है। मैक्रोसिटिक में क्या हो रहा है, कम है लेकिन बड़े हैं, मैक्रोसाइट्स हैं, ठीक है। सो ये समझ आ गया सब लोगों को, ये सबको समझ आया है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया बड़े आरबीसीज, माइक्रोसिटिक छोटे, नॉर्मोसिटिक नॉर्मल साइज लेकिन एनीमिया मींस के आरबीसीज कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, ठीक है। समझ आ गई सब लोगों को ये बात। अब देखिए, अब जो है वो मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं, तो एन आइसोसाइटोसिस में क्या होता है, साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। एन आइसोसाइटोसिस का मतलब है कि कुछ माइक्रोसाइट्स हैं, कुछ मैक्रोसाइट्स हैं, अलग अलग साइजेस के आरबीसीज हैं। कलर में क्या होता है, हाइपोक्रोमेजिया, क्रोम का मतलब होता है कलर, हाइपोक्रोमेजिया का मतलब ये कि कलर लाइट है, ठीक है। हाइपरक्रोमेजिया का मतलब है कलर डार्क है, ठीक है। पॉलीक्रोमेजिया कहीं लाइट है कहीं डार्क है, पॉली मतलब अलग अलग कलर के आरबीसीज, ठीक है। पोइकिलोसाइटोसिस शेप्स डिफरेंट डिफरेंट है, टारगेट सेल्स है, कहीं पतले हैं कहीं मोटे हैं कहीं छोटे हैं, कोई आड़े हैं कहीं स्टार शेप्ड है, अलग अलग है, ठीक है। एंड देन वी हैव रेड ब्लड सेल इंक्लूजन्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स तो ठीक है या नहीं है, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, अलग अलग मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। सो एनआइसोसाइटोसिस साइज अलग अलग, क्रोमेजिया कलर अलग अलग, पोइकुलोसाइटोसिस शेप अलग अलग, इंक्लूजन आरबीसीज के अंदर कुछ इंक्लूडेड है। समझ आ गया ये चारों चीजें, ये समझ आ रहा है। अब आप जब आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगी ना बात कि क्रोमेजिया का मतलब क्या है और एनआइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है। सो माइक्रोसाइटोसिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, एक तो आप लोग सबने अभी बताया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके अलावा और क्या है उसके, मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ माइक्रोसाइटोसिस। इसके अलावा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में भी माइक्रोसाइटोसिस हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज नॉर्मोसिटिक भी हो सकता है और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज माइक्रोसिटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे, और फिर लेड टॉक्सिसिटी की हमने बात की, प्रेगनेंसी में हो सकते हैं माइक्रोसाइटोसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज में हो सकते हैं जैसे कि थैलेसीमिया, दूसरे थैलेसीमिया में भी हो सकते हैं, अल्फा थैलेसीमिया में भी हो सकते हैं, ठीक है। So you need to understand this. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या कॉजेज हैं, मोस्ट कॉमन कॉज आयरन डेफिशिएंसी का न्यूट्रिशनल कॉज होगा या फिर ब्लड लॉस हो रहा होगा, या तो बन नहीं रहा ब्लड या फिर लूज होते जा रहा है। बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि आयरन की कमी है, और लूज क्यों होते जा रहा है, क्योंकि मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से लूज हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, नहीं मिल रहा, मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा पेट में से, सीलियाक डिजीज जैसे है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो गई है, या स्टूल में ब्लड लूज होते जा रहा है। सो यू नो या तो लॉस हो रहा है या बन नहीं रहा, यही रीजंस हो सकते हैं ना आयरन डेफिशिएंसी के, राइट। सो दीज आर द कॉमन कॉजेस। इन्वेस्टिगेशंस में समझने की बात क्या है कि तीन मेजर चीजें होती हैं, अभी आप लोगों ने देखा ना, एक तो फेरिटिन होता है, फेरिटिन का क्या होता है, फेरिटिन होता है स्टोरेज, ठीक है, फेरिटिन इज स्टोरेज। अगर आप यहाँ पर सारी चीजें देखो तो स्टोरेज फॉर्म, आयरन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन होता है। अगर स्टोर्स कम है तो ये सबसे ज्यादा इंडिकेट करता है कि देयर इज आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो स्टोरेज से आपको पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है, इसीलिए फेरिटिन इज कंफर्मेटरी एंड द फर्स्ट टेस्ट यू शुड बी डूइंग इफ यू सी माइक्रोसाइटोसिस। आयरन लेवल्स का क्या होता है कि आयरन लेवल्स ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं और इस आयरन को ट्रांसफेरिन कैच करके अपने साथ मूव करता है,
ठीक है। सो ट्रांसफेरिन की जो है वो काम होता है ट्रांसपोर्ट करना आयरन को, राइट। और टीआईबीसी क्या होता है? आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफेरिन। तो आयरन कितना ट्रांसफेरिन से जाके अटैच हो जाता है उसको हम कहते हैं टीआईबीसी। तो अगर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो फेरिटिन को क्या होगा? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में रिड्यूस हो जाएगा। आयरन को क्या होगा? आयरन रिड्यूस हो जाएगा या बढ़ जाएगा? आयरन भी कम हो जाएगा। और जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है उसका क्या होगा? टीआईबीसी का क्या होगा? ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगी। एब्सोल्युटली। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो ज्यादा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कॉम्पनसेटरी इंक्रीज हो जाएगी ताकि आयरन ज्यादा पकड़ पकड़ के वो लाके और स्टोर करे, ठीक है ना। तो टीआईबीसी वुड इंक्रीज। तो ये सारी चीजें हम करवाते हैं। फेरिटिन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस, आयरन एंड टीआईबीसी आप करवा सकते हो अगर आपको डाउट है तो, वरना फेरिटिन इनफ होता है। और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कब करवाओगे? जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपने सस्पेक्ट किया, माइक्रोसाइटोसिस था और फेरिटिन नॉर्मल आ गया। अगर फेरिटिन भी नॉर्मल आ जाता है, आयरन भी नॉर्मल आ जाता है, टीआईबीसी भी नॉर्मल आ जाता है, तो फिर जो है वो आप सोचोगे कि कुछ और गड़बड़ है, तो आप कराओगे एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एज वी डिस्कस्ड के यहाँ पर सीरम आयरन डिक्रीज हो जाता है, टीआईबीसी इंक्रीज हो जाती है और सीरम फेरिटिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। एक और चीज होती है जो कि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ होती है, जो कि अभी सीबीसी में आप लोगों को मैंने दिखाई थी। ये जो आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन आरडीडब्ल्यू होता है ना, ये आयरन डेफिशिएंसी में बढ़ जाता है, ठीक है। ये आयरन डेफिशिएंसी में विथ जितनी जगह पे फैले हुए होते हैं ना आरबीसीज, वो बढ़ जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी में, ठीक है। क्योंकि जगह ज्यादा हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन विथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ये जो है वो बढ़ावा होता है। थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया में क्या होगा? आयरन नॉर्मल हो सकता है, टीआईबीसी नॉर्मल होगा, आरडीडब्ल्यू भी नॉर्मल होगा और फेरिटिन जो है ना वो नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टोरेज तो है लेकिन आरबीसी फिर भी नहीं बन रहे, ठीक है। मेनास रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज होती है, थैलेसीमिया में इट कुड बी नॉर्मल, ठीक है। इस इट कुड बी नॉर्मल, कभी कभी इंक्रीज भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर नॉर्मल होती है, सही है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में अगेन फेरिटिन नॉर्मल होगा, आरडीडब्ल्यू भी नॉर्मल होगी, आयरन लेवल भी नॉर्मल हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, टीआईबीसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही होगी ना, तो ट्रांसफेरिन इज अ प्रोटीन, ट्रांसफेरिन की डेफिशिएंसी होगी तो टीआईबीसी भी डिक्रीज होगा आपका। तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में टीआईबीसी डिक्रीज हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टीआईबीसी इंक्रीज हो जाता है, सही है। तो ये डिफरेंशिएटिंग कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे तो ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। ये सिर्फ एक फॉरेन आइडिया है कि किस तरीके से ये चीजें डिफर करती हैं इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। आरडीडब्ल्यू जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज होता है, थैलेसीमिया में यूजुअली नॉर्मल होता है और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में भी यूजुअली नॉर्मल होता है। सो whenever the patient comes to you with microcytosis, और microcytosis का मतलब है कि MCV उनका लेस देन 80 होगा, और ये आपको रेंजेस सीबीसी में इजीली मिल जाती हैं, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है वो MCV आपका लेस देन अगर 80 है तो इसका मतलब है कि ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, माइक्रोसाइटोसिस है ये। तो आप इसको आप फेरिटिन लेवल करवाएंगे, फेरिटिन लेवल अगर आपका जो है ना वो लेस देन 15 आता है तो ये आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर नॉर्मल टू हाई आता है तो फिर आप इसका आयरन लेवल करवाइए, टीआईबीसी करवाइए और ट्रांसफेरिन चेक करवाइए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा
कि ये एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है या ये आयरन डेफिशिएंसी ही है या फिर ये थैलेसीमिया माइनर की तरफ जा रहा है। और फिर आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए अगर आपको ये लगता है कि जो है वो आरडीडब्ल्यू आपकी जो है वो नॉर्मल है और आपकी टीआईबीसी भी नॉर्मल आ रही है और आपकी आयरन लेवल्स भी अगर आपके नॉर्मल आ रहे हैं तो फिर आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए। सो फर्स्ट स्टेप इज फेरिटिन। फेरिटिन के अगर लेस देन 15 आ जाए डायग्नोसिस हो गया। अगर मोर देन 15 आता है या नॉर्मल या हाई की तरफ आता है तो फिर आप आयरन करवाइए, टीआईबीसी करवाइए, ट्रांसफेरिन करवाइए और अगर उसमें आपको जो है वो आयरन डेफिशिएंसी उसके थ्रू नहीं लग रहा तो फिर नेक्स्ट स्टेप शुड बी एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये सबको एल्गोरिदम समझ आई है कि आयरन डेफिशिएंसी में आप कैसे मूव ऑन करते हैं? डज एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ये सब लोगों को समझ आया है? अब हम थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे ना तो ये आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो एनीमिया का अगर कॉज फाइंड आउट करना है तो बिसाइड्स फेरिटिन लेवल करवाना और टीआईबीसी और ये सब करवाना, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो आप सिर्फ उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, आप ये देखोगे कि उसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। शी कुड हैव अ फिब्रॉइड। इन्फिनिक्स, बेटा प्लीज अपना नाम लिख दीजिए अपने फोन नंबर की फोन ब्रांड की जगह, सो दैट आई नो हु इज टॉकिंग। ठीक है, सो आपने जो है वो जैसे अल्ट्रासाउंड पेल्विस की जरूरत पड़ सकती है ना, कॉज ऑफ ब्लीडिंग, सो यू मे वांट टू गेट एन अल्ट्रासाउंड पेल्विस। अगर पेशेंट मलीना की कंप्लेन कर रहा है तो यू मे वांट टू रेफर द पेशेंट फॉर अ कोलोनोस्कोपी। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो और कोई कंप्लेन, कोई क्रॉनिक डिजीज है, फीवर है, वेट लॉस है तो आप, और कॉफ है तो आप हो सकता है एक्सरे कराएं। ठीक है, सो वट एवर द सिम्टम्स आर लाइक, उस हिसाब से आप जो है वो उनके इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करोगे। ठीक है, सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी तो उसके हिसाब से लुक फॉर इट। ठीक है, तो विथ आयरन डेफिशिएंसी फेरिटिन के साथ आप जो है वो ये सारी चीजें भी एज पर द केस, जो केस दिया हुआ है उस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करोगे। सो इफ यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू ऑर्डर, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू राइट फेरिटिन, आयरन, टीआईबीसी, ट्रांसफेरिन, एंड यू वुड ऑर्डर अल्ट्रासाउंड पेल्विस फॉर एग्जांपल इन दिस पेशेंट। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप लिखोगे। आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिकली यू शुड टेल योर पेशेंट टू ईट बीफ एंड मटन। हमारे यहाँ होता क्या है कि घरों में आजकल बीफ मटन बिल्कुल खाना बंद हो गए हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए सोचा जाता है कि सारे खानदान का बीफ मटन बंद कर दो, बच्चों इंक्लूडेड, बच्चे इंक्लूडेड। वो जो जंक फूड खा रहे हैं वो खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, पिज्जास खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं, लेकिन बीफ बंद कर दो, मीट बंद कर दो। होता क्या है कि जब बीफ और मीट बंद हो जाता है तो आयरन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है लोगों को। तो आप ये देखिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसकी वजह से होता है। इसके अलावा एग योक हम निकाल देते हैं। रिमेंबर, हर पेशेंट कहता है अंडे की जर्दी हम निकाल देते हैं। हाँ, फिर अंडे की जर्दी निकाल के पराठे पे घी लगा के खाते हैं, सही है, लेकिन वो जर्दी छोटी सी बेचारी उसको अलग कर देते हैं, है ना। हालांकि एग योक में भी आयरन होता है। ठीक है, सो ये सारी चीजों में आयरन है। पोटैटोज में भी आयरन होता है विथ स्किन, उसकी स्किन में आयरन होता है। चुकंदर, यस, बीटरूट में भी होता है, बिल्कुल होता है, बीन्स में, पीज में, बिल्कुल। तो ये सारी चीजों में आयरन है। सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू, व्हेन यू गोइंग टू काउंसिल योर पेशेंट, तो आप उनको बताएंगे कि आयरन रिच फूड क्या क्या है और उनको क्या चीजें खानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आयरन की सोर्सेज बताने के अलावा ट्रीट द कॉज। ठीक है, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करिए। जैसे अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, सो वी आर गोइंग टू, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ओबीजीवाईएन मॉड्यूल में, वो उनको पता है कि किस तरह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट किया जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो पढ़ेंगे। सो इसको वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया
डायग्नोज करने के बाद आप जो है वो सीबीसी देखते हैं, फेरिटिन देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो डायग्नोज करके यू पुट देम ऑन आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी के बाद मंथली सीबीसी करवाते हैं। मंथली सीबीसी से आपको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना इंप्रूव हो रहा है। आई वुड नॉट इवन गेट द कंप्लीट सीबीसी, मैं सिर्फ हीमोग्लोबिन करा लेती हूँ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सीबीसी 700-800 रुपए का होता है, और अगर आप हीमोग्लोबिन कराओ तो 250 रुपए का हो जाता है। तो जस्ट टू save their money, patients money, I would just get a hemoglobin after a month, एंड 1 महीने के बाद कम से कम 1 ग्राम बढ़ना चाहिए। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर बढ़ा है तो इसका मतलब है कि ये आयरन डेफिशिएंसी है। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे फेरिटिन अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने का होता है फेरिटिन, किसी को पता है? फेरिटिन कितने का होता है? 2000 रुपए का। नायाब कह रही है 2000 रुपए का होता है। सो 2000 रुपए का बताइए कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आपको लग रहा है ना कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड जो है वो पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपको पता चल गया है कि ये तो बीफ खाते ही नहीं, इनके तो घर बीफ पकता ही नहीं है, और वजन भी कम है पेशेंट का, और आयरन डाइट में भी नहीं है, और जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग देयर फेरिटिन, टीआईबीसी, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब करवाने की जगह उनको ट्रीट कर दीजिए, और ट्रीट करने के बाद 1 महीने के बाद हीमोग्लोबिन चेक करिए। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, इसका मतलब है कि ये भी डायग्नोस्टिक है फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बेटा आयरन लेवल्स जो है ना वो सवाल ये है कि फेरिटिन क्यों चेक करते हैं, आयरन क्यों नहीं? क्योंकि आयरन लेवल्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन पे भी। जो आयरन अटैच होता है ना वो पिक नहीं हो रहा होता है, तो आयरन के लेवल्स जो है ना वो सर्कुलेटिंग आयरन की लेवल्स डायरेक्टली आपको बॉडी में आयरन के स्टेटस नहीं बताते। फेरिटिन जो है वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि स्टोरेज कितना है, इसीलिए ठीक है, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन एंड दैट टेल्स यू द एक्चुअल स्टेटस ऑफ आयरन इन योर बॉडी। हाँ उर्सिला, जो लोग पेल होते हैं और हीमोग्लोबिन उनका नॉर्मल होता है ना, तो ऑल्सो थिंक ऑफ देयर लिवर फंक्शंस। ठीक है, बहुत दफा लोग पेल लगते हैं और फिर उनके लिवर फंक्शंस ठीक नहीं होते, तो उनका जरूर एक टोटल बिलिरुबिन या एसजीपीटी करा के देख लिया करें। सेकेंडली ये कि कुछ लोग फेमिलियल पेल होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप गोरे हैं, आप पेल नहीं है, आप जो है ना वो फेयर है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं मेरी अम्मी का भी रंग ऐसा ही है, और हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होता है और एलएफटीज भी नॉर्मल होते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन उनके ना म्यूकस मेम्ब्रेन को देखा करें, म्यूकोजा सफेद नहीं होता, म्यूकोजा उनका ठीक होता है, तो इवन इफ दे लुक पेल देयर म्यूकोजा इज रेड। सही है, तो उससे पता चल जाता है, टंग से पता चल जाता है, बिल्कुल सही है। तो सीबीसी आप जो है ना वो 1 महीने पे इवेल्युएट करेंगे, और 3 महीने तक हीमोग्लोबिन जब ठीक भी हो जाए ना, तो 3 महीने तक आप उसको जो है वो आयरन कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं बता रही हूँ आयशा, डोज वगैरह मैं आपको सब बताऊंगी अभी, ठीक है, नायाब मैं सब बता रही हूँ, राइट। सो एलिमेंटल आयरन इज 120 मिलीग्राम्स पर डे फॉर 3 months। ठीक है, 120 मिलीग्राम्स एलिमेंटल आयरन। एलिमेंटल आयरन का मतलब है कि एक्चुअली आयरन जितनी एब्जॉर्बेबल है, राइट, सो वो लिखा हुआ होता है उस पर। चिल्ड्रन 3 mg per kg per day up to 60 mg per day। ठीक है, तो 3 to 6 mg per kg per day के हिसाब से बच्चों को देते हैं, मैं अभी आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। You expect an increase in hemoglobin of 1 gram per deciliter after 1 month treatment, ठीक है, which shows response to treatment. थेरेपी फॉर 3 months आफ्टर एनीमिया इज करेक्टेड। 3 और महीने तक आप उनको आयरन देते रहोगे, जब हीमोग्लोबिन ठीक हो गया उसके बाद भी। सही है। जीआई एडवर्स इफेक्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग आयरन नहीं ले पाते, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है। इन लोगों को आप ये कहते हैं कि मील्स के साथ ले लें। आइडियली आयरन इज टेकन बिफोर मील्स, लेकिन अगर जो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते उनसे आप कहते हैं कि मील्स के साथ ले लें। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, सो बी वेयर ऑफ देम। उनसे कहिए कि पीपीआईज को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है आयरन के साथ, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सही है, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मील्स के साथ ले ले, लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होती है उसकी।
So let's look at this. At 25 years old, Mr. Lakshman presents with numbness in bilateral hands and feet for last 2 months. He's a vegetarian. Which of the following investigation would confirm the diagnosis? Before answering to this one, have you all understood iron deficiency anemia? सबको iron deficiency anemia समझ आया है? सारी ट्रीटमेंट सब चीजें समझ आई हैं आप लोगों को? आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू अ फ्यू जो अवेलेबल प्रेपरेशंस होती हैं, और मैं पारेंटरल आयरन की भी कुछ आप लोगों को वो बताऊंगी क्या इंडिकेशंस है. बट लेट्स बेटा, कुड यू अफशीन आस्क योर क्वेश्चन अगेन? आई एम सॉरी आई मिस्ड इट. अच्छा, at what levels parenteral iron should be given? Yes, I'm coming to it. Afshin, I'm coming to it. ठीक है, ये मैं parenteral iron और transfusion की भी indications बताऊंगी. Do you want me to take a 5 minutes break, or do you want me to complete iron deficiency anemia बिल्कुल एकदम, और फिर उसके बाद मैं break लूँ? What do you want me to do? Mispa, do you want me to break? What do the others think? है ना, 5 minutes नाइला, एक 5 minutes का ब्रेक लेते हैं, एंड देन वी गोइंग टू कम बैक. ठीक है, जस्ट 5 minutes ब्रेक, ताकि दिमाग में थोड़ा सा आप लोग जो चीजें मैंने अभी तक बताई है ना उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए while we come back. You can also go to the loo, you can also bring a cup of tea if you want. 5 minutes. Yes, sure, Naya.
Okay, so are you all back? Should we keep treating if only iron level is low? कहकशां, आप जब आप रिपीट कराते हो ना, तो आप हीमोग्लोबिन को आप रिपीट कराते हो 1 महीने के बाद. यू डोंट गेट द आयरन लेवल अगेन एंड अगेन. तो अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी हो गया ना, तो जब नॉर्मल हो जाए, जैसे इन फीमेल्स हमने कहा 12 से ज्यादा हो जाए, मेल्स में 13 से ज्यादा, तो भी 3 महीने तक आप उसको ट्रीट करते रहें. ठीक है. यस. तो थैलेसीमिया के साथ आयरन सिर्फ उस वक्त देते हैं जब थैलेसीमिया भी हो और फेरिटिन भी लो हो. ठीक है. अदरवाइज जो है वो आप थैलेसीमिया के साथ आयरन नहीं देते हैं. ठीक है. थैलेसीमिया में जिन लोगों का फेरिटिन नॉर्मल होता है, उनको आप जो है वो आयरन नहीं देते हैं. सही. राइट. सो लेट्स मूव ऑन. मुझे एडमिन बता रही है कि 2 और मिनट है मेरे पास, लेकिन मैंने 2 मिनट में सवालों के जवाब दे दिए ना. कोई बात नहीं है सलीमा. ओके, जी इसका जवाब दे दीजिए. ओके, सो नमनेस इन बायलैटरल हैंड्स एंड फीट हो रहा है और वेजिटेरियन है. ठीक है. इसका आंसर ज्यादातर लोगों ने सही दिया था. ठीक है. और अभी भी सही दे रहे हैं. सो इसका आंसर है विटामिन B12. ठीक है. ओके, सो ये जो है वो आयरन की सारी सप्लीमेंट्स हैं, जो आपको किसी भी नाम से आप ले लें. मेरी किसी से ताल्लुकात नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी से. ये जनरली यूज्ड हैं. आई यूजुअली यूज आइब्रिड फोलिक. ठीक है. जो है वो एलिमेंटल आयरन बस देख लिया करें कि 120 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल आयरन होना चाहिए किसी में भी. ठीक है. सो वो जरूरी है. फीफॉल इज ऑल्सो गुड. बिल्कुल. ये फेरस सल्फेट भी अच्छी होती है, लेकिन फेरस सल्फेट ट्वाइस डेली देनी पड़ती है. 200 BID डोज होता है ना इसका. हाइब्रिड फोलिक का फायदा ये इसका वंस डेली है. सेंगोबियन भी 1 OD है. फीफॉलविट भी OD है. तो ये जरा आसान होती है देना. पीपीआई की वजह से जिसको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो जाहिर है पीपीआई को बंद करके और उसको जो है ना वो दूसरा H2 रिसेप्टर दे देना चाहिए ना. जैसे वो फेमोटिडीन दे सकते हो आप. ठीक है. फेमोटिडीन दे सकते हो. सही है. ओके. पेरेंट्रल आयरन थेरेपी की इंडिकेशंस क्या है? बड़े आसानी से हम सब लोगों को वीनोफर देते फिरते हैं, है ना. कितनी आसानी से देते हैं, हर किसी को इंजेक्टेबल पे डाल देते हैं. लेट मी टेल यू, पेरेंट्रल आयरन थेरेपी सिर्फ एक ही वजह से दी जाती है. वो ये है कि अगर कोई ओरल टॉलरेट ना कर सकता हो तो. इवन प्रेगनेंसी में भी पेरेंट्रल की कोई इंडिकेशन नहीं है अनलेस कि वो ओरल टॉलरेट ना कर सकता हो तो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एज जीपीज आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैल प्रैक्टिस नहीं करिए. आयरन को पेरेंट्रल देने से नुकसान भी हो सकता है. ठीक है. उसमें एलर्जिक रिएक्शंस बड़े कॉमन है. अर्टिकेरिया होता है, एकदम अक्यूट एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. स्टेनिंग हो सकती है स्किन की. इरिथमियाज हो सकते हैं. रैशेस हो सकते हैं. सही है. सो टॉलरेट जो ना कर रहा हो ओरल, सिर्फ उसको देना होता है. समझ आई बात? Those who have undergone gastrectomy हुई हुई है, बेडियाट्रिक सर्जरी हुई हुई है, आपको पता है कि आप ओरल देंगे ये एब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है. या फिर जैसे किसी को सीलियाक डिजीज है, उनको आप दे दीजिए. ठीक है. वरना अदरवाइज फिर मैं बता रही हूँ, पेरेंट्रल देने की इंडिकेशंस हीमोग्लोबिन के लेवल के हिसाब से नहीं है. इसीलिए मैंने कहा था कि मॉडरेट एनीमिया, सिवियर एनीमिया याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट मॉडरेट और सिवियर एनीमिया की डिफरेंट नहीं है. समझ आई बात? समझ आई है? सब लोगों को आई है कि नहीं आई है? जल्दी बताओ, ये बात इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डू नॉट फॉरगेट दिस. साइड इफेक्ट्स देखो, अभी मैंने बताया, अभी हमने डिस्कस किए इतने सारे साइड इफेक्ट्स. सही है. ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ये आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. तो मैं अब हर चीज पढ़ पढ़ के नहीं बता रही. आप लोग बाद में रिवीजन के वक्त आप लोग ये यूज कर सकते हो. ठीक है. आयरन थेरेपीज ये जो दी हुई है ऑलरेडी, ये सारी आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन सुक्रोज, ये इनमें से कोई भी दे सकते हो आप. ठीक है. फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट. ठीक है. इनमें से कोई भी दे सकते हो.
और इसके डोजेस भी लिखे हुए हैं। ये जो है वो इंट्रावीनस के जो है वो एक मैंने आप लोगों को वीनोफर दिखा दिया है, और वीनोफर का डोज भी जो है वो ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से डोजेस आप इसके दे सकते हो। यूजुअली आयरन जो है ना ये इससे इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वाले टेबल के नीचे जो फॉर्मूला, इससे आप कैलकुलेट करते हो कि पेशेंट की नीड कितनी है पैरेंटरल आयरन की, और इससे कैलकुलेट करके फिर उसको जो है वो अकॉर्डिंगली इन्फ्यूज करवाते हो आयरन, ठीक है। यूजुअली लोग ये करते हैं कि 100 मिलीग्राम्स जो है वो वीकली 3 डोजेस दे देते हैं इस तरीके से, या 200 मिलीग्राम्स वंस वीकली 3 डोजेस दे देते हैं, इस तरह से जो है वो यूज करते हैं। लेकिन जनरली जो है वो यू शुड कैलकुलेट इट थ्रू दिस फॉर्मूला, सही है। एंड यू कैन ऑलवेज लुक इट अप, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है याद रखने की जरूरत है, आपके हाथों में मोबाइल है, अब तो इतना आसान हो गया है आपके, यू कैन जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट कि इसका डोज कितना बनता है, राइट। ट्रांसफ्यूजन की क्या रिक्वायरमेंट है? नायाब, डू यू वर्क इन OBGYN या वो, क्योंकि बिकॉज आई सी दैट यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ। ट्रांसफ्यूजन का भी कोई जो है वो थ्रेशोल्ड नहीं है कि इस लेवल पे ट्रांसफ्यूज कर दो। किसी का 5 है हीमोग्लोबिन तो उसको ट्रांसफ्यूज कर दो, ठीक है। ये कोई लेवल नहीं है। किस चीज पे डिपेंड करता है मुझे कौन बताएगा? ट्रांसफ्यूजन की जो इंडिकेशन है वो क्या होती है? यस सुमेरा, सिम्टोमेटिक, लेकिन सिम्टोमेटिक ऐसा बाल गिरने वाला नहीं कि किसी के बाल गिर रहे तो उसको आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया। सिम्टम्स सिवियर इनफ, कॉजिंग हार्ट फेलियर, ठीक है, कॉजिंग सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यस, ये वाले सिम्टम्स के साथ कोई प्रेजेंट करता है, बहुत एक्सट्रीम लिथार्जी, फटीगेबिलिटी, उसमें आप ट्रांसफ्यूज करते हो, ठीक है। सो इसका कोई लेवल नहीं है कि जिस पे आप ट्रांसफ्यूज करोगे, बट depends on the severity of symptoms, ठीक है। प्रेगनेंसी में यूजुअली 6 का कट ऑफ है। प्रेगनेंसी में 6 से अगर कम हो किसी का हीमोग्लोबिन तो उनको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए, ठीक है। सो ओनली प्रेगनेंसी में कट ऑफ है 6 का, अदरवाइज अडल्ट, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड मेल्स में कोई कट ऑफ नहीं है, सही है। सब लोगों को समझ आया है ये? आई मूव ऑन। New people who are here with me, I see 60 participants here. 60 participants में से जो नए लोग हैं मेरे पास, क्या उन लोगों को ये सारी चीजें समझ आ रही हैं? नाइला, are you able to follow? Davar, Amna, Atiya, Majibeen, and Asma, Armara, Ursula. I see quite a few new people here. Rahil, Raja, and Muhammad Salim. Are you all able to follow? Great. Do you find this lecture at the base at par with your understanding? ऐसा तो नहीं है? Am I going too fast? या you're able to not able to follow it, catch it? ऐसा तो नहीं हो रहा? प्लीज लेट मी नो। आप लोग प्लीज अपने कमेंट्स जो है वो इस पे, बड़ा अच्छा नायाब ने लिखा यू आर ऑन लाइन। थैंक यू नायाब फॉर लेटिंग मी नो, मैं लाइन पे हूँ। ग्रेट, चले लेट्स मूव ऑन। अगर ट्रांसफ्यूजन आप करते हैं तो 2 यूनिट्स ऑफ पैक्ड सेल जो है वो ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, राइट। सो लेट्स कम टू दिस best choice question, again a best choice question like that of MRCGP and MCPS. A 55 years old lady presents with a CBC report showing microcytic hypochromic anemia with a hemoglobin of 8, ठीक है। ferritin level is क्या है? ferritin level is normal with low iron and TIBC. तो TIBC लो है, इसका मतलब है कि ट्रांसफेरिन लो हो गई है, और लो आयरन एंड TIBC, तो मैंने क्या कहा था कि ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन होती है। अगर प्रोटीन लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबली एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है। एब्सोल्युटली, हालांकि इसका सबने गलत जवाब दिया था, ज्यादातर लोगों ने, आज अचानक से सब सही बोल पड़े। सही, ठीक है ना? एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। चले जी, इसका आंसर बता दीजिए। यस सुमेरा, आप समझ आ गई ना? 35 years old lady presents with heavy menstrual bleeding for last 2 years. On examination she is pale, hemoglobin is 7, which is the best management option for her. अब इसमें कोई मुझे गलत जवाब देगा ना तो उसकी पिटाई हो सकती है। ऑनलाइन
चमाट का ऑप्शन जो है वो मैंने बताया है कि जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। यस राहील, एब्सोल्युटली सही जवाब। ठीक है, जबरदस्त। और ये सही जवाब नहीं दिया था लोगों ने, अभी बोले है सही। मैंने देखा था ज्यादातर लोगों ने पैरेंटल आयरन लिखा हुआ था, है ना। A 25 years old female presents with few reports. CBC shows a hemoglobin of 10, microcytic hypochromic anemia and ferritin of 70. ठीक है, और 70 is normal to high. What is the next investigation would you order? Next investigation would you order? फेरिटिन अच्छा खासा ज्यादा है ना, तो आयरन टीआईबीसी यहाँ पर जो है वो बनता नहीं है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यहाँ पे करना चाहिए आपको, क्योंकि इतने हाई फेरिटिन के साथ इट इज वेरी अनलाइकली कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। ये अच्छा खासा हाई है फेरिटिन, ऑन दी अपर लिमिट है ना। लोअर लिमिट होता तो आप आयरन टीआईबीसी कराते, लेकिन ये ना काफी ऑन द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और BCQ, 17 years old female with fatigability presents with a few reports. His नहीं, her CBC, ठीक है, फीमेल ही है। Her CBC shows a hemoglobin of 9.4, microcytic hyperchromic anemia, ferritin of 70, HB electrophoresis showing 3% HbA2, ठीक है, हीमोग्लोबिन A2 नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, पता है किसी को? नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? HbS नहीं होता नायाब, नो, ये तो सिकल सेल वाला होता है HbS। HbA होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbA जो है वो होता है, और A2 जो है ना यूजुअली लेस देन 2% होता है। A2 जो है वो यूजुअली लेस देन 2% होता है, इनका है 3%। तो 3% HbA2 का मतलब है दिस कुड बी थैलेसीमिया माइनर, दिस कुड बी थैलेसीमिया माइनर। तो इसमें आप क्या करेंगे? रीअश्योर करेंगे। हेमेटोलॉजिस्ट क्या करेगा बेटा? आप इसमें जो है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराइए, करा लिया है आपने, 3% आया है, अब उसको रीअश्योर करिए। हेमेटोलॉजिस्ट ने उसका क्या करना है? ट्रांसफ्यूज करना है, कुछ नहीं करना उन्होंने, ठीक है। So basically थैलेसीमिया क्या होता है ना, so you need to understand the structure of hemoglobin. hemoglobin में रेड ब्लड सेल में अल्फा चेन्स होती हैं, बीटा चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ठीक है, और एक हीम ग्रुप होता है जिसमें आयरन होता है, ठीक है। so ये स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। अब इसमें जो आपकी बीटा थैलेसीमिया होता है, उसमें जो बीटा चेन्स जो होती हैं उसमें गड़बड़ होती है, ठीक है। तो बीटा चेन्स में आपकी गड़बड़ होती है, और इसमें क्या होता है कि आपका जो HbA है वो अगर माइनर है तो HbA2 आपका जो है वो 2% से बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सो HbA2 अगर आप नॉर्मल में देखेंगे ना, अनअफेक्टेड मतलब नॉर्मल में HbA2 होता है 2%, HbA होता है 97%, और फीटल हीमोग्लोबिन HbF जो है वो सिर्फ 1% होता है। जब माइनर थैलेसीमिया होता है तो उसमें HbA2 बढ़ा हुआ होता है, और आपका HbA जो है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो HbA कम होगा और A2 बढ़ा हुआ होगा। जो थैलेसीमिया मेजर होता है ना, उसमें तो HbF फीटल हीमोग्लोबिन ही बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको पता चल जाता है कि अगर HbF बढ़ा हुआ है तो थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर यूजुअली अडल्ट्स में डायग्नोज नहीं होता है, बच्चों में ही डायग्नोज हो जाता है ना, क्योंकि वो इट इज नॉट, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गेटिंग ट्रांसफ्यूजन। उर्सिला, थैलेसीमिया माइनर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पे थैलेसीमिया माइनर कंफर्म हो जाता है, उसके बाद कुछ कराने की जरूरत नहीं है। कहकेशा, फोलिक एसिड का क्या पूछना चाहते हो? सो ये सबको समझ आया कि आम जो बीटा थैलेसीमिया जो होता है, जो आम वाला थैलेसीमिया होता है ना, वो बीटा थैलेसीमिया होता है। उसके अंदर जो है वो नॉर्मल में HbA2 2% होता है और माइनर में
2% से 8% तक HbA2 होता है, सही है। और मेजर में HbF बहुत सारा होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। उसके बाद आपका आसान हो जाएगा इंटरप्रेट करना Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी, ठीक है। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एंड थैलेसीमिया ऑन द बेसिस ऑफ आयरन टेस्ट एंड Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस? कोई फोलिक एसिड का भी खास थैलेसीमिया माइनर में रोल नहीं है। कहकशा थैलेसीमिया माइनर में कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ रीअश्योर करते हैं, ठीक है। सो एमसीवी जो है वो आपका दोनों में लो होता है, माइक्रोसाइटोसिस दोनों में होगा, थैलेसीमिया में भी होगा, आयरन डेफिशिएंसी में भी होगा, लेस देन 80 फेमटोलिटर, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ये हमने डिस्कस किया था कि रेड सेल विथ जो है वो आयरन डेफिशिएंसी में हाई होती है और बीटा थैलेसीमिया में नॉर्मल होती है, जनरली नॉर्मल होती है, हाई भी हो सकती है लेकिन नॉर्मल होती है। फेरिटिन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी में लो होगा, थैलेसीमिया में यूजुअली नॉर्मल होगा। दोनों चीजें साथ भी हो सकती है, थैलेसीमिया भी हो और आयरन डेफिशिएंसी भी हो, ये दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। एक और इंडेक्स होता है जिसको मेंसर्स इंडेक्स कहते हैं। मेंसर इंडेक्स जो है वो रेशियो होता है एमसीवी ओवर आरबीसी काउंट। ये अगर मोर देन 13 होता है तो यू थिंक ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और लेस देन 13 होता है तो बीटा थैलेसीमिया की आपको जो है वो सस्पिशन होना चाहिए। सो इट इज अ रेशियो ऑफ एमसीवी एंड रेड ब्लड सेल काउंट। Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस आयरन डेफिशिएंसी में नॉर्मल होगा और बीटा थैलेसीमिया में HbA2 बढ़ा हुआ होगा 2% से ज्यादा। ये सब लोगों को समझ आ गया दोनों के डिफरेंसेस, ठीक है। अगेन जो कंफर्मेटरी होता है वो Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड गिव देम आयरन एंड रीचेक देयर हीमोग्लोबिन इन अ मंथ, और अगर बढ़ गया इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी था, अगर नहीं बढ़ा तो फिर मैं उनका कहती हूँ कि Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करा लीजिए। आई वुड नेवर गेट TIBC and iron level done. I would only get a ferritin level done if possible. अगर ferritin मैं नहीं करा सकती अफोर्डेबिलिटी की वजह से तो मैं हीमोग्लोबिन के बेसिस पे और हिस्ट्री के बेसिस पे I would treat the patient and repeat the hemoglobin in a month to see कि कितना improve हुआ. And you could also do this in your GP practice, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अफोर्डेबिलिटी का, है ना। So please keep that in mind. सही, सबको समझ आई है ये सारी चीजें? Can I move on? When do we refer thalassemia patient to a hematologist? बेटा अब सुमेरा हेमेटोलॉजिस्ट को रेफर करने की थैलेसीमिया माइनर को तो कोई जरूरत नहीं है। वो और बात है कि प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया माइनर के साथ प्रेगनेंसी हो और बहुत लो हीमोग्लोबिन रहते हो तो फिर आप उसको रेफर कर दीजिए कि ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है या नहीं है, बट अदरवाइज जो है वो नहीं। यस महनाज, अगर आप आयरन, इनका सवाल है अगर थैलेसीमिया को हम आयरन दे दें और फेरिटिन उनका नॉर्मल हो तो हार्मफुल? यस, इट कैन लीड टू आयरन ओवरलोड, ठीक है, इट कैन लीड टू आयरन ओवरलोड। इसीलिए थैलेसीमिया के पेशेंट को आयरन नहीं देते आप, लेकिन 1 महीना अगर आप किसी को आयरन दे भी दे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको आयरन जो है वो 6 महीने साल भर तक कंटिन्यू रखेंगे विद थैलेसीमिया तो प्रॉब्लम है, 1 महीने में प्रॉब्लम नहीं है। यस नीना, इट कैन लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस, एब्सोल्युटली फाइजा, राइट, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, है ना। बुक कोने की चीजें सबको आती है लेकिन पारेंट्रल आयरन की इंडिकेशन नहीं पता, है ना, ऐसे ही है ना, हम सब ऐसे ही है। अक्यूट ब्लड लॉस में फेरिटिन लेवल फॉरन डिक्रीज हो जाता है। फेरिटिन को थोड़ा टाइम लगता है बेटा, स्टोर्ड आयरन है ना, तो उसको टाइम लगता है अक्यूट ब्लड लॉस में। लेकिन अक्यूट ब्लड लॉस में आप फेरिटिन कराएंगे ही क्यों, मुझे बताइए। अगर किसी का अक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो आपको तो ब्लड रिप्लेस करना है ना, और आपको उसको वैसे भी आयरन दे देना चाहिए, आपको फेरिटिन कराने की क्या जरूरत है उसकी, है ना, नहीं है ना जरूरत किरण। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पर आप देखो कि ये क्या लग रहा है आप लोगों को, इसमें जो RDW है, ये वाला जो RDW है, ये क्या है, ये वाला देखिए RDW जो CV वाला है, ये आप लोगों को आयरन डेफिशिएंसी लग रहा है या ये आप लोगों को जो है थैलेसीमिया लग रहा है या ये एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज लग रहा है? दिस इज मोस्ट लाइकली
क्या है ये? RDW बढ़ा हुआ है इसका, RDW बढ़ा हुआ होता है तो मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। सो RDW बढ़ा हुआ है इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर ये नॉर्मल होता तो फिर जो है वो रेड सेल विथ होता है। बेटा CV वाला देख लिया करें, CV इज इनफ, ठीक है। दो यूजुअली दिए हुए नहीं होते, एक ही दिया हुआ होता है। तो RDW जो है वो अगर नॉर्मल है तो इट फेवर्स थैलेसीमिया, अगर एलिवेटेड है तो फिर जो है वो ये मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी है। यू कैन गेट द फेरिटिन लेवल। सो जस्ट टू अगेन रिवाइज इट, ठीक है, कि RDW की क्या वैल्यू होती है, वो CBC में ही नजर आ जाता है ना, तो आसान हो जाता है आपको। कभी कभी मतलब आप पेशेंट का फेरिटिन लेवल नहीं कराना हो ना आपको, तो आप RDW देख लिया करें। RDW अगर नॉर्मल है तो फिर ये थैलेसीमिया को वो करता है। अगर RDW बढ़ा हुआ है तो फिर आप ना कराएं फेरिटिन, पेशेंट को वो आयरन दे दीजिए 1 महीने के लिए, ठीक है महनाज। तो आप इस तरह से डिसाइड कर लीजिए कि आपको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है या फेरिटिन कराना है, या आपको जो है वो उसको आयरन दे देना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, अब ये थोड़ा सा जेनेटिक एडवाइस की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स। एन engaged couple presents to you for advice. The female is a known patient of thalassemia minor. What would be the best advice for this couple? ठीक है, तो फीमेल को माइनर है और आप क्या एडवाइस देंगे उनको? बिल्कुल सही एडवाइस दे रहे हैं, बिल्कुल। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मेल का करवा लीजिए, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है, सही है। गेट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर मेल। अच्छा, इसका बताइए। engaged couple presents to you, female is a known patient of thalassemia minor while the spouse has a normal HB electrophoresis। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? कौन सी एडवाइस सबसे करेक्ट है? chances of having thalassemia minor in child is 50%। 50%। सब यही कह रहे हैं? 50% है चांस? आर यू श्योर? थैलेसीमिया माइनर नहीं, 50% कैसे है? क्यों क्यों कह रहे थे 50%? हाँ, अभी बताती हूँ कैसे। ये देखिए, अगर ये वाला केस है ना, ये वाला केस है, देखिए कि जो एक बंदा है वो अफेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा जो है उसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल है, उसको माइनर भी नहीं है, ठीक है। हस्बैंड को माइनर भी नहीं है, वाइफ को माइनर है, राइट। तो यहां पर जो है वो आपका चांसेस ऑफ हैविंग थैलेसीमिया माइनर किस तरह होगा कि आपका जो है वो, अगर ये वाली जीन जो है वो इससे मिलेगी या फिर ये वाली जीन जो है वो इससे मिलेगी, तो 50% चांस है। 25 नीना, हाउ डू यू से 25%? ये कैसे कह रही हो नीना 25%? एक को नहीं है और एक को है, 50% ही तो है, 50% नहीं है चांस। लोगों सोच रहे हैं सारे, ये है ना, ये वाला सिनेरियो था, ये वाला सिनेरियो था, ठीक है। और अगर दोनों को हो थैलेसीमिया माइनर तो 50% चांस ऑफ हैविंग माइनर एंड 25% चांस ऑफ हैविंग मेजर, ठीक है। 50 यहां पर 50% चांस ऑफ हैविंग माइनर एंड 25% चांसेस ऑफ हैविंग मेजर। और दोनों को ये वाला ना, ये वाला जो है दोनों को अगर माइनर है, ठीक है, दोनों को माइनर है तो 25% मेजर एंड 50% माइनर। अगर दोनों को जो है वो दोनों में से एक को ट्रेट है और एक को नहीं है, नॉर्मल है, तो 50% चांस। इफ यू लुक एट दिस MCQ, इसमें C भी करेक्ट है और इसमें D भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है इसमें। चांसेस ऑफ हैविंग थैलेसीमिया मेजर इन चाइल्ड इज निल, ठीक है ना। दो नहीं हो सकता ना बच्चे को, अगर एक को एक नॉर्मल है और दूसरे को माइनर है तो नहीं हो सकता ना। एम आई राइट? इसमें दो आंसर्स करेक्ट है ना, ठीक है ना, सबको समझ आया? इसमें दो आंसर्स करेक्ट है, ट्रिकी नहीं है शमोना, मिस्टेक है ये,
या आंसर की मिस्टेक की हुई है। आई थिंक यहाँ 25% लिखना था और गलती से 50% लिखा गया है। ठीक है, ओके। सो इसमें तो बच गए। 25 years old Mr. Lakshman presents with numbness, ये वाला तो किया था ना हमने। Which of the following statement is most likely true? तो ये सबने कहा था B12 deficiency है ये। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कि इस पेशेंट के बारे में कि उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, power in lower limbs is less likely to be less, he is a vegetarian, his stool local blood is positive. तो इसमें most likely he is a vegetarian. ठीक है, यस, सबको सही आंसर्स आ रहे। हालांकि जो है वो मैं अगर उसका वो रिजल्ट देखूं तो रिजल्ट इज बहुत बुरा है। अचानक कैसे आंसर्स आ गए, अभी तो पढ़ाया भी नहीं है। 44 years old male presents with easy fatigability and numbness, ये केस है, ठीक है, in both feet. So this is a case of probably आप लोग जो कह रहे थे विटामिन B12 वाला ना। CBC shows HB of 10, WBC 3.6, platelet 150, peripheral film shows a MCV of 110, इसकी रेंज है 80 to 100। ठीक है, तो हमने कहा था अगर MCV 80 से कम है तो माइक्रोसाइटोसिस है, यहाँ पर 100 से ज्यादा है तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, मैक्रोसाइटोसिस है। यस उर्सिला, डायबिटिक्स में भी कम होती है, लेकिन जब आप डायग्नोसिस की बात करेंगे, जब आप वन बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो जो बेस्ट आंसर होगा वो देंगे। ठीक है ना, और उस केस में बेस्ट आंसर वही था। यस, सो व्हाट थ्री डिफरेंशियल्स, 3 डिफरेंशियल्स बता दीजिए, इसके 3 डिफरेंशियल्स बताने हैं, एक आंसर नहीं बताना, 3 डिफरेंशियल्स। यस सुमेरा, हाइपोथायरॉयडिज्म, अल्कोहलिज्म, बिल्कुल सही। मैक्रोसाइटोसिस के डिफरेंशियल्स, B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही। पर्निशियस एनीमिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू ऑर्डर, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे यहां पर? विटामिन B12 लेवल करवाएंगे। सीबीसी तो हुआ हुआ है ना बेटा, सीबीसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में एमसीपीएस में, तो इसमें सीबीसी लिखने के कोई मार्क्स नहीं है क्योंकि दिया हुआ है। आपको लिखना पड़ेगा विटामिन B12, आरबीसी, फोलेट। यस, थायराइड प्रोफाइल नहीं करेंगे नाइला, अभी आप नए नए आए हो ना, इसीलिए मैं आपको इस बात पर जो है वो कुछ कह नहीं रही, लेकिन जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको पता है कि हम पूरा पूरा टेस्ट नहीं कराते, हम सिर्फ जो जरूरत हो वो कराते हैं। सो TSH कराएंगे, ठीक है ना, ओनली TSH। और व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू ऑर्डर एंड हाउ वुड यू मैनेज? ठीक है, सो लेट्स सी के इसको मैनेज कैसे करते हैं। ओरल देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं, इसकी क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होती है B12 डेफिशिएंसी की, ये सारी चीजें एसोसिएटेड हो सकती है। ग्लोसाइटिस इसमें भी होता है, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया। अच्छा, इसमें ना पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि B12 डेफिशिएंसी इज अ कॉज ऑफ पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया, उसमें प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, उसमें ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिया, डिमेंशिया, साइकोसिस, एबनॉर्मल बैलेंस इश्यूज, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेटरी सेंस। तो सेंसेशंस कौन सी कम होती है? स्पेसिफिकली वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। ऑल्फैक्टरी इंपेयरमेंट एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, दूसरी सेंसेशंस भी इंपेयर्ड हो सकती है, पेन भी कम हो सकती है। लेकिन शुरू में वाइब्रेशन अगर आप चेक करें ना किसी का नायाब, तो वाइब्रेशन इज ओनली, अगर आप वाइब्रेशन भी चेक कर ले और किसी की रिड्यूस है ना, तो यू कैन से कि अगर डायबिटिक नहीं है तो ये मोस्ट लाइकली ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी है। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि न्यूट्रोफिल्स में मल्टीपल लोब्स होते हैं, राइट? सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर मैं पूछूं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की मोस्ट लाइकली कॉजेज क्या है, तो क्या जवाब देंगे? व्हाट आर द 2 मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया? B12 deficiency and folate deficiency. Yes,
तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें न्यूट्रोफिल्स में मल्टीपल लोब्स होते हैं, वो सिर्फ फोलेट और B12 डेफिशिएंसी से होता है। मैक्रोसाइटोसिस जिसमें आरबीसी का एमसीवी बढ़ जाता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, मोर देन 100 हो जाता है, उसके B12 और फोलेट डेफिशिएंसी के अलावा अल्कोहल भी एक कॉज है, उसका कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के 2 ही कॉजेज हैं, ठीक है। तो अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मिल जाए ना, तो आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं मिलता, सिर्फ मैक्रोसाइटोसिस मिलता है, तो फिर आप सारी चीजें उसकी टेस्ट करवाइए, TSH भी करवाइए, अल्कोहल का भी पूछिए, ठीक है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर अटैचेस टू द विटामिन B12 एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और एब्जॉर्प्शन कहां से होती है इसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया आप लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया, एक जवाब भूल गए आप लोग। मेडिकेशंस कैन आल्सो कॉज मैक्रोसिटिक एनीमिया। कौन सी मेडिकेशंस? कौन सी मेडिकेशंस? आईफोन, अपना नाम बता दीजिए। मेटफॉर्मिन कैन कॉज मैक्रोसिटिक एनीमिया एंड मीथोट्रेक्सेट एंड एक और हमारा हम सबका पसंदीदा जाना पहचाना PPI, yes फाइजा, PPI can cause macrocytic anemia। कितना कॉमनली देते हैं? अब सोचिए आप, उससे मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, राइट। लिवर डिजीज, COPD से भी एसोसिएशन है। B12 डेफिशिएंसी के कॉजेस क्या होते हैं? स्पेसिफिकली B12 डेफिशिएंसी के कॉजेस क्या होते हैं? नायाब 20 मिलीग्राम की बात नहीं है, 40 मिलीग्राम राइजेक्स से भी हो सकता है, ठीक है। B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस, सही है। डिक्रीज्ड इलियल एब्जॉर्प्शन, सो वी सेड कि जब B12 एब्जॉर्ब इलियम से होता है तो क्रॉन्स डिजीज, टेप वर्म इन्फेस्टेशन, जहां से भी B12 एब्जॉर्प्शन इंपेयर होगी, आपको मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। डिक्रीज इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में, मेडिकेशन यूज में, inadequate intake, alcohol abuse, ठीक है, elderly patients, इवन देखिए H2 रिसेप्टर यूज से भी जो है वो हो सकता है, राइट। तो अगर आप जो है ना वो फेमोटिडीन वगैरह यूज करें, उससे भी हो सकता है। मेटफॉर्मिन यूज, PPI, ठीक है, यस। इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी डिस्कस्ड, सीरम B12, आरबीसी फोलेट भी इसका जरूर कराएंगे, होमोसिस्टीन लेवल करवाएंगे, कि ये सारी चीजें करवाएंगे पेशेंट की। सॉरी, आई जस्ट फोलेट, आरबीसी फोलेट कराएंगे, ठीक है। 4 आई फॉरगेट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और अगर आपको जो है वो कोई और चीज जैसे कि TSH लेवल है, वो भी अगर आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है तो TSH भी कराएंगे। अगर आपको मेगैलोब्लास्टिक मिलता है तो TSH कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुमेरा, जो लीफी वेजिटेबल्स का B12 है ना, वो इतना एब्जॉर्बेबल नहीं होता। तो जो लोग मीट नहीं खाते ना, ऑर्गन मीट में ना सबसे ज्यादा B12 होता है, ऑर्गन मीट में। तो खास तौर पे ऑर्गन मीट जो लोग नहीं खाते ना, तो उनको ज्यादा B12 डेफिशिएंसी होती है। फोलेट जो है ना, वो आपको लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा मिलता है। फोलेट इसीलिए फोलेट डेफिशिएंसी मैं हार्डली कभी देखती हूँ, फोलेट डेफिशिएंसी नहीं मिलती यूजुअली, क्योंकि वेजिटेरियन वेजिटेबल्स हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, सब खा रहे होते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स की वजह से मिल जाता है। तो अगर किसी को फोलेट डेफिशिएंसी हो तो आप उनको ग्रीन वेजिटेबल्स एडवाइस करोगे। और B12 डेफिशिएंसी में एग्स, फिश और बीफ, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन सब, लिवर, तो ये वेजिटेरियंस देखिए ना, ये इनमें से कोई भी चीजें नहीं खाते होते हैं, तो इस वजह से जो है वो आपकी B12 डेफिशिएंसी होती है उनको, ठीक है। तो ये एडवाइस टू द पेशेंट है, राइट। दिस इज नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस टू द पेशेंट कि क्या खाइए।
ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? विटामिन B12 ओरल एंड इंजेक्टेबल, और जिन लोगों की बेरियाट्रिक सर्जरी हुई हुई है जैसे ओबेसिटी वगैरह के लिए, जैसे अदनान समी खान की हुई हुई है, तो उसको B12 लेवल सारी जिंदगी लेना पड़ेगा, सही है। और फोलिक एसिड साथ साथ ही ली जाती है B12 के, तो B12 की डेफिशिएंसी आए तो फोलिक एसिड दे दीजिए, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आए तो B12 भी दे दीजिए, सही है। और फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम्स की गोली जो आती है वो आप दे सकते हो फॉर 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स के लिए देते हैं। B12 की कैसे देते हो? इंजेक्टेबल भी दे सकते हो, ओरल भी दे सकते हो। इंजेक्टेबल्स जो है वो कोई ऐसा रेजीम नहीं है कि इसी तरीके से दो, लेकिन विटामिन B12 ना वाटर सॉल्यूबल है या फैट सॉल्यूबल है? B12 इज वाटर सॉल्यूबल या फैट सॉल्यूबल? विटामिन बी जो है वो सारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो वाटर सॉल्यूबल नहीं बेटा, वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स्ट्रा भी हो जाए ना आपकी बॉडी में तो ये टॉक्सिसिटी नहीं करता, तो आप दे सकते हो। इसीलिए लोग न्यूरोबायोन के इंजेक्शन इधर उधर लगाते रहते हैं और डॉक्टर्स देते भी रहते हैं। लेकिन विटामिन डी इज फैट सॉल्यूबल के वाटर सॉल्यूबल? विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है, व्हाट इज फैट सॉल्यूबल है। तो विटामिन डी ना एक्सेस एक्सक्रीट नहीं होता, तो इसी वजह से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। B12 की कभी टॉक्सिसिटी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इसका मैं व्हाट आई वुड यूजुअली डू इज कि मैं B12 के 10 इंजेक्शन दे देती हूँ वंस वीकली। जिनको B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आई वुड गिव देम 10 इंजेक्शन वंस वीकली। You can also give them oral, सही है। ओरल 500 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स आती हैं, मैं भी आप लोगों को शो कर दूंगी, वो भी दे सकते हो। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं ना, उसमें तो जरूर इंजेक्शन देना चाहिए। अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स नहीं है, सिर्फ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो फिर आप ओरल भी दे सकते हो, सही है। यस, कोई भी रेजीम फॉलो कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। B12 एंड फोलेट साथ साथ दे देते हैं। रीटेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने B12 को रिप्लेस कर दिया तो बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, सही है। ये देखिए, ये टैबलेट्स है, न्यूरोमेट के नाम से आती है और मेथिकोबैल के नाम से आती है। ये 1000 माइक्रोग्राम पर डे दे देते, तो 1 टैबलेट BID दे देते, ठीक है। फायदा वो जो सिर्फ नमनेस की कंप्लेन करते हैं, अगर उनका आप CBC कराते हो, मैक्रोसिटिक एनीमिया आता है, तो आप उनको ट्रीट कर दीजिए या B12 लेवल करवा लीजिए उनके, ठीक है। और अगर सब चीजें नॉर्मल आती है तो नमनेस के और भी कॉजेस सोचिए, फिर सोचिए कोई और वजह है। बहुत दफा फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से हो रही होती है, यहाँ सुन, ये हाथ सुन, पाँव सुन, फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है। ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को should we supplement diabetic with B12 if they have more than 5 years and middle age mostly? Yes, diabetics में अगर वो मेटफॉर्मिन पे है ना, तो आप उसको जो है वो रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन से डेफिशिएंसी हो जाती है। व्हाट आई वुड डू इज कि मैं हर 3 महीने में उनको एक न्यूरोबायोन का इंजेक्शन लगवा देती हूँ डायबिटिक्स को, ठीक है। दैट इज माय प्रैक्टिस। लेकिन ये है कि जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं ना, या फिर PPIs भी ले रहे होते हैं, तो उनको तो इंजेक्टेबल लगा देना चाहिए, क्योंकि PPIs के साथ एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती ना। तो PPIs जो लोग ले रहे होते हैं उनको अगर आप ओरल दोगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। ये सुमेरा लेटेस्ट ही है, इंजेक्शन जो है और ओरल दोनों दे सकते हैं आप। ओरल इज एज इफेक्टिव एज इंजेक्टेबल, जब तक के सारी एनीमिया इंप्रूव ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी जो है वो आप 3 मंथ्स तक, देखिए 3 मंथ्स तक दे सकते हैं, 3 मंथ्स तक आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ओरल देके 3 मंथ्स तक आप ओरल 500 माइक्रोग्राम BID दे दीजिए। वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ना रेटिक काउंट भी बढ़ा हुआ होता है, सॉरी रेटिक काउंट जो है ना नहीं बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप को मैक्रोसिटिक एनीमिया को हिमोलिसिस से डिफरेंशिएट करना हो ना, तो हिमोलिसिस में रेटिक काउंट बढ़ा हुआ होता है। तो दिस इज जस्ट टू शो यू दैट। तो लेट्स सी, ये वाला जो है वो 45 years old anemic female presents with yellowish discoloration of skin for last 1 month. Her reports show a hemoglobin of 9, WBC of 6, platelet of 170, and poikilocytosis. Her total and indirect bilirubin is raised and otherwise normal liver function test. Which of the following is likely to be raised in this patient? तो इनका क्या हो रहा है, इनको एनीमिया के साथ इनको जॉन्डिस हो रहा है, और जॉन्डिस में इनका जो है वो इनडायरेक्ट
बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़े हुए होने का क्या रीजन होता है? क्या हो रहा है पेशेंट को? हिमोलिसिस हो रही है ना, हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। हिमोलिटिक एनीमिया में क्या करवाते हैं? रेटिकुलोसाइट काउंट करवाते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट इनमें बढ़े हुए होते हैं, ठीक है, 2% से ज्यादा होते हैं। तो रेटिक काउंट अगर बढ़ा है तो ये हिमोलिसिस हो रहा होता है। 45 years old anemic, ये वही वाला केस है। What is the most likely cause of an anemia? आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। सुमेरा, आई एम कमिंग टू इट, ठीक है। तो हिमोलिसिस, राइट, इसका आंसर तो आ गया सब लोगों को। ये सही आंसर दिया था पहले आप लोगों ने, इसका गलत आंसर दिया था ना, इसके भी आंसर बहुत रॉन्ग था। ओके, सो दीज आर ऑल द ड्रग्स व्हिच कैन कॉज हिमोलिसिस, और इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं। नाजिम, ये सारी दवाइयां हिमोलिसिस कॉज कर सकती है। सेफ्ट्राइक्सोन, मिथाइल डोपा, एनसैड्स, पेनिसिलिन, क्लोपिडोग्रिल, कोकेन, मेट्रोनाइडाजोल, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, क्यूटाइपिन, क्विनीन, सिम्वास्टैटिन, रिफैम्पिसिन, ये यूजुअली जो हम लोग जीपी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, ठीक है, ये सब हिमोलिसिस करा सकती हैं। इसमें लेबोरेटरी वर्कअप में, एज यू ऑल सेड, इसमें जो है वो रेटिक काउंट आपका बढ़ावा होता है। आपके पेरिफेरल स्मीयर में आपको अजीब अजीब साइज के और आपको मॉर्फोलॉजी के सेल्स मिलेंगे। एलडीएच इसमें बढ़ावा होता है, हेप्टोग्लोबिन बढ़ावा होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ावा होता है। यूरिन एनालिसिस में यूरोबिलिनोजिन आएगा, जिसका मतलब है कि हिमोलिसिस हो रही है पेशेंट को, ठीक है। सो यूरोबिलिनोजिन आएगा उसमें। सो जो है वो ये आप इसका हिमोलिसिस हिमोलिटिक एनीमिया के वर्कअप में रेटिक काउंट, एलडीएच, हेप्टोग्लोबिन, बिलिरुबिन, ये बढ़ी हुई होंगी, ठीक चीजें, ठीक है ना। और बहुत सारे अलग अलग शेप के आपको पेरिफेरल स्मीयर पे ब्लड सेल्स नजर आएंगे, राइट। ये सबको समझ आया? हिमोलिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैन रिजल्ट इन हेमोलिसिस, हो सकता है, ऐसा हो तो सकता है मारिया, हेमोलिसिस हो सकता है क्योंकि उसके सेल्स इतने बढ़ जाए कि हेमोलिसिस बढ़ जाए, ठीक है। हेप्टोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड, ओके। So 40 years old female presents with right calf pain for last 3 days. She recently traveled, achha, this is a different question. She recently traveled to Pakistan from New Zealand. On examination, there is pedal edema with redness and swelling of calf. What is the best management option for this patient? G. Refer to hematologist. Start warfarin. यार शमोना, आयशा, कहकशां, सवेरा, मदीहा, अगर ये भी तुम लोग करोगे तो बेचारा हेमेटोलॉजिस्ट क्या करेगा? ये जीपी जो है वो, इसको जीपी को डीवीटी में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये डीवीटी है ना, सबको ये तो पता समझ आ गई है कि ये डीवीटी हो रही है। तो डीवीटी में के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको हाँ यहाँ पे लिखा होता कि अल्ट्रासाउंड डॉपलर करा ले तो समझ में आता था, लेकिन जो है वो वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वार्फरिन स्टार्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रेफर। बिल्कुल नाजिम, यू कैन नॉट स्टार्ट वार्फरिन राइट अवे। इसकी जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो चुकी है। मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो क्या कहती है। इसका आंसर है रेफर टू हेमेटोलॉजिस्ट। इसका आंसर अभी मैंने सबको अनाउंस कर दिया है, तो जल्दी से बता दे। नाजिम, अब हेपरिन भी नहीं देते भाई, उससे भी आगे बढ़ गए हम, अब हेपरिन भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर सबको पता है, अल्ट्रासाउंड डॉपलर, ठीक है। अच्छा, अब इसका जवाब बताइए जरा। अगर आपके पास जो है वो पेशेंट, यही वाली पेशेंट को राइवरॉक्सिबैन पे डाला गया था, तो अब जो है ना ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स आ गए हैं जिसमें राइवरॉक्सिबैन दिया जाता है डीवीटी के साथ। तो ये कितने मंथ्स के लिए देते हैं? अगर कोई और रिस्क फैक्टर ना हो, सिर्फ फर्स्ट टाइम डीवीटी किसी को हुई हो, एक ही डीवीटी का एपिसोड हुआ हो, तो ये जो है वो
3 मंथ्स देते हैं, बिल्कुल सही है, 3 मंथ्स तक देते हैं सिर्फ, ठीक है, इसका आंसर है 3 मंथ्स। यस जैनब। अजिम, वेरी गुड। कुछ लोग हैं जो बहुत बहुत देर बाद बोले, बट आई लाइक टू सी देम स्पीकिंग। A 24 years old male presents with fever for last 5 days. His CBC done yesterday shows a hemoglobin of 12, WBC of 3.2, platelet of 34,000. Dengue IgM is positive. What is the best management for this patient? 34,000 पे? Yes, that's right. फरमान, एडमिट फॉर ऑब्जर्वेशन। बेटा आपको पता है जब डेंगू का सीजन आता है तो ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जिनके 34, 40, 25 ऐसे भी होते हैं। क्या आप सबको एडमिट करोगे? एडमिट करके भाई कहाँ एडमिट करोगे? सारे जो लोग एडमिट कर रहे हैं, एडमिट करके करोगे क्या ऑब्जर्वेशन में एडमिट करके? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद देम? कोई एडमिशन की नीड नहीं है, इसमें कोई किस्म का जो है वो इंडिकेशन नहीं बनती एडमिट की। आप इनको घर भेज सकते हो, 24 आवर्स में प्लेटलेट रिपीट करा लीजिए। बहुत ज्यादा आपको जो है वो पेशेंट एंशियस लग रहा है तो 12 आवर्स में करवा लीजिए। इतना डेंगू कॉमन है, अफशीन कह रही है इंटीरियर में, तो आप कहाँ एडमिट करते फिरोगे इन सबको? यहाँ कराची में भी बेटा कॉमन हो गया। सो व्हाट वुड यू डू इज के सिर्फ अगर सिम्टोमेटिक होता है पेशेंट के ब्लीड कर रहा हो कहीं से तो ही ट्रांसफ्यूज करते हैं। और अब जो है वो प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज नहीं किए जाते हैं। क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं आप? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं करते पहले की तरह। अब जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूज पूरा पूरा ब्लड कर देते हैं ट्रांसफ्यूज, ठीक है ना? बिल्कुल ब्लड कर देते हैं ट्रांसफ्यूज। तो लेकिन सिम्टोमेटिक जो ब्लीड कर रहे हो ना उनमें करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन रेड फ्लैग्स एंड रिपीट प्लेटलेट, ठीक है। डेंगू एक्चुअली ना हमने, जो लोग नए हैं ना उनको पता नहीं है, डेंगू हमने अपने इन्फेक्शियस डिजीज मॉड्यूल में किया था, इसीलिए सब लोगों को आंसर्स पता है इसके, ठीक है ना। 42 years old female presents with easy bruisability and excessive menstrual bleeding for last 3 months. Her HP is 9, WBC is 4.5 and platelets are 50,000. What is the most likely diagnosis? जी, ये बिल्कुल ITP है। और ये किसको हुई थी? ITP सब लोगों को पता है ना, हमारे मशहूर तरीन मुझे क्यों निकाला। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे क्यों निकाला, ITP सही है, जब प्लेटलेट्स बगैर किसी वजह के कम हो रहे हैं। यंग फीमेल्स, यस यंग फीमेल। जी, इसका आंसर दीजिए। 17 years old male recently presents with recurrent malaria and is treated. His fever subsided within 48 hours of treatment. After a week, he presented with yellowish discoloration of the skin and his CBC showed a hemoglobin of 8 with normal platelets, unconjugated hyperbilirubinemia and high LDH count. अभी हमने देखा था LDH और अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्यों हो रहा है, तो हो क्या रहा है इनको ये बता दीजिए। इनको क्या हो रहा है? हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। और हेमोलिटिक एनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ये G6PD डेफिशिएंट थे। और ये G6PD डेफिशिएंट थे तो इनको कौन सी दवाई ऐसी दे दी गई जिससे इनको हेमोलिसिस हो गया? इनको प्रिमक्विन दे दी गई, ठीक है। सो प्रिमक्विन से इनको हेमोलिटिक एनीमिया हो गया। सही है, बिल्कुल सही। 70 years old male, known diabetic, hypertensive, ex-smoker, presents with fatigue for last 4 months. On examination, he has a BMI of 27 and splenomegaly. His CBC shows a hemoglobin of 18.2 and platelet 466. WBC is normal. What is the most likely cause of these results? Yes. I have actually seen a patient like this and he presented with portal vein thrombosis. He presented with headaches and portal vein thrombosis उनका आया क्योंकि उनको जो है ना वो पेट पे दर्द हो रहा था और मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको portal vein thrombosis निकला। CBC में he had a hemoglobin of 18, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि this patient must be suffering from polycythemia vera, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया के क्या क्या कॉजेस होते हैं? प्राइमरी इरिथ्रोसाइटोसिस जो कि
ओवर प्रोडक्शन फ्रॉम बोन मैरो, या फिर सेकेंडरी इरिथ्रोसाइटोसिस, जो जैसे नॉर्दर्न एरियाज में हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं, जिनको किसी भी रीजन की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा हो, कार्डियोपल्मोनरी कॉज हो सकता है, और इनको जो है ना वो कोई ब्लड डिजीजेस हो सकती है, रीनल डिजीजेस, स्लीप एपनिया की वजह से हाइपोक्सिया होता है, स्मोकिंग की वजह से हाइपोक्सिया होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सिया की वजह से इरिथ्रोसाइटोसिस होता है, सो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है वो प्राइमरी इरिथ्रोसाइटोसिस है, ठीक है, वो ऑटो इम्यून होता है। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फटीग, इंसोम्निया, खारिश, पूरी बॉडी में खारिश खारिश खारिश, concentration problems, splenomegaly, erythromelalgia, arterial thrombosis, venous thrombosis, major hemorrhage, ठीक है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 4 चीजें आती है, ठीक है। एक तो हीमोग्लोबिन 16.5 से ज्यादा होगा, ठीक है, 16.5 से ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन। हिमैटोक्रिट भी बढ़ा हुआ होगा, या हीमोग्लोबिन बढ़ा हो या हिमैटोक्रिट बढ़ा हो, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर इनका बोन मैरो कराया जाए तो उसमें जो है वो आपकी प्रोलिफरेशन हो रही होगी मेगा कैरियोसाइट्स की। और इसमें एक जीन होती है जिसको जैक2 कहते हैं, JAK2 जीन, जेनस काइनस 2 जीन। ये ना अवेलेबल है आजकल बड़ी बड़ी लैब्स में, ये आराम से हो जाती है जैक2 जीन। तो जैक2 म्यूटेशन के साथ पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है, और इसमें इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स कम होते हैं। तो ये 4 चीजें होती है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, या फिर हिमैटोक्रिट ज्यादा होता है, या बोन मैरो पे आपको जो है वो इसकी इंडिकेशन मिले, या फिर जैक2 जीन आपकी बढ़ी हुई मिले, या इरिथ्रोपोइटिन आपका सब नॉर्मल हो। तो ये क्राइटेरियाज है इसमें, और इसमें से 3 मेजर क्राइटेरिया या फिर फर्स्ट 2 मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया हो तो भी डायग्नोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो दैट इज हाउ हेमेटोलॉजिस्ट्स वुड डायग्नोज इट। बट पॉलीसाइथीमिया को आपको रेफर कर देना चाहिए हेमेटोलॉजिस्ट को, फॉर देम टू डिसाइड वेदर द पेशेंट नीड्स ट्रीटमेंट। इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा में, किसी को पता है? जनरली एक जस्ट एन आइडिया कि पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या ट्रीट करते हैं। इतना सारा ब्लड है तो क्या करना चाहिए? what do you think makes sense? फ्लेबॉटमी कर देना, उनका ब्लड डोनेट कर दे, उनको हम कहते हैं ब्लड डोनेट कर दो, ठीक है। सो ब्लड डोनेशन होता है, और भी उसमें मेडिसिन यूज होती है, मगर प्राइमरीली ब्लड डोनेशन। इसका क्या आंसर है? 70-year-old मेल वही वाला है, पॉलीसाइथीमिया वेरा वाला पेशेंट है, इसमें से क्या ट्रू है? इरिथ्रोपोइटिन तो यूजुअली लो होता है ना, तो बी और सी दोनों जो है वो रॉन्ग है। और बोन मैरो बायोप्सी की कोई इंडिकेशन नहीं है, नहीं बोन मैरो बायोप्सी करवानी पड़ती है इनकी। और इट इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नहीं, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बट इट इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोसिस, ज्यादा हो जाता है इसमें प्लेटलेट काउंट, सही है। तो इसका आंसर इज ए, JAK2 जीन इज पॉजिटिव इन 98% ऑफ द केसेस। पूछ रही है पॉलीसाइथीमिया का ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना बेटा? पॉलीसाइथीमिया तो ऑटो इम्यून डिजीज है, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ज्यादा हीमोग्लोबिन है ना, आपको कम चाहिए, उसको डोनेट कर दें। बहुत ज्यादा आपका ब्लड बन रहा है, उसको दे दीजिए किसी को, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस का मैं श्योर नहीं हूँ बेटा, हीमोक्रोमेटोसिस का आई एम नॉट श्योर कि ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं ये लोग या नहीं कर, मतलब दूसरों को ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आई थिंक दे सकते हैं, इसमें क्या मसला है? मेरा ख्याल में तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में ये चीजें होती है, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, आप उनको एस्पिरिन पे डाल दीजिए। जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा आता है ना, उनको आप एस्पिरिन पे डाल दीजिए, क्योंकि इट कैन प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस ना, आपका क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग क्लॉट्स, सही है। और इसमें जो है वो हेमेटोलॉजिस्ट वुड यूज हाइड्रोक्सी यूरिया, और एंटी कोएगुलेशन भी यूज होती है इसमें, जैसे कि वॉर्फरिन वगैरह यूज की जाती है, ठीक है। अरीज इसमें आयरन कीलेशन हीमोक्रोमेटोसिस में करते, पॉलीसाइथीमिया में नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो आपके कॉजेज है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के, ठीक है। सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के कॉजेज है, ये हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेके करें। जस्ट ये आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ है, दोज हु आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक कैन जस्ट लुक एट इट, सही है, व्हाइल वी टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक।
ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मेरे ख्याल में 2-3 स्लाइड्स हार्डली रह गई हैं जहां तक मेरा ख्याल है, नॉट मेनी स्लाइड्स, बस हम वी आर अबाउट टू फिनिश. ठीक है, you can fill up the forms, you can fill up the feedback forms if you like. I would like to know your feedback. क्यों खास तौर पे जो लोग नए हैं उन लोगों से, so that I know कि आप लोगों को pace of my session ठीक लग रहा है. Are you not lagging behind? And do you like the way in which we are discussing things? Do you like the format of the session? ये सब चीजें please let me know. ठीक है, we are taking just a 5 minutes break. We'll be back after 5 minutes.
Okay, so we're back. There were a few questions in the break. Somebody asked कि सारे sessions इसी format पे होंगे. बिल्कुल बेटा यही format follow होता है. ऐसे थोड़ी होता है ट्रेलर दिखाया कुछ और किया कुछ और. Of course, मतलब ये इसी तरह से हम पढ़ते हैं और there are quite a few students जो who have attended 20 modules. तो ये this is the 21st module जो हम कर रहे हैं. तो सारे हमारे जो lectures है वो इसी तरह होते हैं, ठीक है, और interactive होते हैं. और आपको जो है वो अगर कोई भी हम लोग इस तरह का हाँ बिल्कुल सवेरा नहीं, वो तो हम सर्टिफिकेट देंगे ना तो उस पर पिक्चर लेंगे. सो जो भी हम जो है वो ऐसा कोई सेशन ऑफर करते हैं जो कि फ्री फॉर ऑल होता है. सो इट कम्स ऑन द फेसबुक पेज एज वेल एंड द एडमिन आल्सो शेयर्स इट विथ यू ऑल अगर उनका आपने अपना नंबर उनको दिया हुआ है. तो इस तरह के सारे जो सेशंस होते हैं जो कि फ्री एंट्री होती है तो वो एनीबडी कैन अटेंड, ठीक है. अदरवाइज वो मॉड्यूल का पार्ट होते हैं. अगर पूरा मॉड्यूल 21 मॉड्यूल्स का आपने अटेंड करना है सो प्लीज गेट इन टच विद सलीमा एंड शी इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू इट. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग दिस के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स किस किस वजह से होते हैं. तो एक तो प्लेटलेट की वजह से होते हैं, एक वैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो है ना ब्लड वेसल्स आपकी वीक होंगी, जैसे कि स्कर्वी, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, या फिर दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे कि एलर-डेनलॉज एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है. कुशिंग सिंड्रोम में भी जो है वो इजी ब्रूजेबिलिटी वैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होती है. प्लेटलेट्स में एक तो वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, और एक वो होते हैं जिसमें क्वांटिटी तो नॉर्मल होती है लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती. तो ऑल्दो के उसके नंबर्स ठीक होते हैं प्लेटलेट्स के, लेकिन फिर भी पेशेंट को इजी ब्रूजेबिलिटी होती है. तो उसमें जो है वो सार्कोइडोसिस में जैसे और इडियोपैथिक भी हो सकता है कि बगैर किसी वजह के ब्रूजेबिलिटी है और प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है तो उसमें थोड़ा बहुत डिसफंक्शन होता है प्लेटलेट का, ठीक है. फिर देन वी हैव कोगुलेशन डिसऑर्डर्स जिसमें कुछ कंजेनाइटल होते हैं, जिसमें आपको पता है हीमोफीलिया है, जो भी फैक्टर डेफिशिएंसीज होती हैं वो कंजेनाइटल होती हैं. और एक्वायर्ड में लिवर डिजीज, विटामिन के डेफिशिएंसी है ना, वॉरफ्रिन अगर कोई ले रहा है, या फिर डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन सेप्सिस हो जाए सिवियर तो ये एक्वायर्ड कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाती है. जैसे डीआईसी आपको पता है आजकल कोविड में डीआईसी हो जाता है, सो दैट इज एक्वायर्ड, right? So these are few causes of bleeding disorders. कुछ drugs हैं जो increase cause of bleeding, please be aware of them. अगर patient एस्प्रिन भी ले रहा है और क्लोपिडोग्रिल भी ले रहा है तो उसको ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं. मैंने ऐसे बहुत पेशेंट्स देखे हैं, एल्डरली पेशेंट्स, जिनको जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो मल्टीपल उस पे डाल देते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स पे, एंड व्हाट दे कम अप विथ, या तो बेचारे जो है ना वो मलीना के साथ आते हैं, या फिर वो जो है कोई फॉल होती है तो ब्रेन में जो है वो सबड्यूरल हेमेटोमा के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इतने सारे आप उनको एंटी प्लेटलेट्स दे रहे होते हो कि रिस्क ज्यादा हो जाता है, बेनिफिट कम हो जाता है, ठीक है. इवन एनसेड्स कैन लीड टू ब्लीडिंग, आप लोगों को पता है ना ये बात, यू ऑलरेडी टोल्ड मी. कुछ एसएसआरआईज, एसएनआरआईज भी करा सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी ड्रग्स व्हिच कैन लीड टू इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉजेस क्या होते हैं? या तो प्लेटलेट कम प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना बॉडी में, तो जैसे बोन मैरो ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो ए प्लास्टिक एनीमिया है, उस पे बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं कर रहा. कोई इन्फेक्शन है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, अल्कोहल अब्यूज की वजह से है, ठीक है. सो ये सारे डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन की वजह से होता है. इंक्रीज प्लेटलेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है तो उसमें भी कुछ इसी तरह के कॉजेज होते हैं इन्फेक्शंस की वजह से. आईटीपी में क्या होता है कि प्लेटलेट की कंजम्पशन, बहुत जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स टूट रहे होते हैं, तो जो नए प्लेटलेट्स है वो उतनी तेजी से नहीं बन रहे होते जितनी तेजी से प्लेटलेट्स टूटते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही होती है प्लेटलेट्स की. तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज प्लेटलेट कंजम्पशन हो जाती है. तो आइदर यू कुड हैव ब्लीडिंग ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज कंजम्पशन, ठीक है. तो ये दो मेजर कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है. और उसमें लिवर डिजीजेस में, हाइपरस्प्लेनिज्म में अगर स्प्लीन का साइज बढ़ गया, जैसे मलेरिया में स्प्लीन का साइज बढ़ गया तो उसकी वजह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता रहेगा, और अगर वो बढ़ा हुआ रहा तो प्लेटलेट्स आपके कम ही रहेंगे. सिमिलरली लिवर डिजीज में भी जो है वो आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं. सो दीज आर कॉजेज ऑफ thrombocytopenia which you should keep in mind when you see a patient with low platelet level. Coagulation की जहां तक
अगर हम पीटी एपीटीटी करवाते हैं और प्लेटलेट लेवल करवाते हैं, तो दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच वी यूजुअली डू अगर इफ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग टेंडेंसी, है ना। तो प्लेटलेट अगर किसी के नॉर्मल है और पीटी उनका प्रोलॉन्ग है, तो या तो उसको क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी है या फिर वो हो सकता है वार्फरिन पर हो, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेशन से, वार्फरिन से पीटी लॉन्ग होता है, एपीटीटी नॉर्मल होता है और प्लेटलेट भी नॉर्मल होता है। अगर सिर्फ एपीटीटी बढ़ा हुआ है, पीटी नॉर्मल है और आपका प्लेटलेट भी नॉर्मल है, तो फिर हीमोफीलिया या दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज में ऐसा होता है। अगर आपका पीटी भी बढ़ा हुआ है, एपीटीटी भी बढ़ा हुआ है, तो इसमें भी मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से पीटी एपीटीटी दोनों बढ़े हुए हो सकते हैं। लिवर डिजीज में भी पीटी और एपीटीटी दोनों बढ़ सकते हैं। हेपेरिन पे भी पीटी एपीटीटी दोनों बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में दोनों नॉर्मल होंगे, पीटी एपीटीटी, प्लेटलेट्स लो होंगे। और लिवर डिजीज में ऐसा भी होता है कभी कभी कि प्लेटलेट्स भी लो होते हैं, एज वी ऑलरेडी सॉ कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉज में भी लिवर डिजीज आता है, एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पीटी भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो क्योंकि लिवर से ही सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, तो इसमें, और अगर लिवर डिजीज हो तो उसमें प्लेटलेट की कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो इसमें जो है वो प्लेटलेट्स भी लो हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मिसबा इतना सिर्फ याद रखिए कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में सिर्फ प्लेटलेट्स कम होंगे, और अगर पीटी और एपीटीटी आपका बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, ठीक है, या फिर पेशेंट वार्फरिन ले रहा है, या फिर लिवर डिजीज भी हो सकती है। बस ये 2-3 चीजें अगर आप याद रख लें, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा समझने और याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं याद होता। सो प्लेटलेट कम है तो सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉजेस को सोचिए। अगर आपके पीटी एपीटीटी जो है वो बढ़े हुए हैं, तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, या फिर लिवर डिजीज है, या फिर जो है वो पेशेंट हो सकता है हेपेरिन या फिर वार्फरिन पर हो, ठीक है। विटामिन के डेफिशिएंसी, बिल्कुल। तो इसका जवाब दीजिए। Yes, heparin से सिर्फ APTT बढ़ता है. A 22-year-old male is a known case of hemophilia A, factor 8 deficiency. Which of the following is true regarding hemophilia in his family? तो हीमोफीलिया कौन सी जीन पे कैरी होता है, किसी को पता है? कौन सा जीन पे कैरी होता है? रेगुलर जीन्स पे होता है या सेक्स लिंक जीन्स पे होता है? एक्स लिंक्ड होता है, बिल्कुल एक्स जीन पे होता है ना, एक्स में रिसेसिव होता है। यस, दैट्स राइट। तो इसका जवाब क्या लग रहा है आप लोगों को? इसका जवाब क्या लग रहा है? फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है या मेल्स में हीमोफीलिया? मेल्स में ही होता है ना, होता ही मेल्स में है, बिल्कुल। और क्यों, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जब मेल्स में होता है तो इसका आंसर जो है वो लग रहा है कि ही होगा, क्योंकि हिज मदर डज नॉट मैनिफेस्ट द डिजीज, ठीक है। जो फीमेल्स होती है ना, उनको डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होती, सामने नहीं आती, ठीक है। उनको जो है वो एक्स लिंक, चूंकि उनका डबल एक्स जो है वो क्रोमोसोम होता है, तो अगर एक एक्स पे जीन होगी तो दूसरा एक्स नॉर्मल होगा, इस वजह से उनको डिजीज सामने नहीं आएगी, इस तरह से। अब देखिए, ये मदर है, इसको एक एक्स पे डिजीज है, हेमोफीलिया है, और एक एक्स पे नहीं है, मेल दोनों नॉर्मल है, सही है। अब जब इनके बच्चे होंगे तो इनके बच्चों में जैसे जो एक फीमेल होगी उसको जो है वो कैरियर होगी वो, ठीक है, एक फीमेल जो है वो कैरियर होगी, और इसमें जो एक मेल होगा वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो अगर एक एक्स पे ही डिजीज आ गई तो ये डिजीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, सामने आ जाएगी, ठीक है। पैटर्नल अंकल क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, इसमें तो, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है बेटा, इसमें कहाँ है? पैटर्नल अंकल इज लाइकली टू हैव हीमोफीलिया। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल का मतलब है कि अब्बू के भाई को हीमोफीलिया अगर होता तो यार ये मतलब बच्चे में कैसे आ सकता है? मटर्नल में हो तो हो सकता है। यस मिसबा, मटर्नल में तो समझ आता है। पैटर्नल अंकल को अगर हीमोफीलिया जो है वो है, तो
तो बच्चे में कैसे आ सकता है, इनके इनके भाई के बेटे में कैसे आ सकता है? ये तो एक्स में कैरी होता है। समझ आया सुमेरा? ये तो बड़ी तुमने वैसी बात कर दी, खतरनाक किस्म की। इल्जाम लगा दिया यार तुमने अम्मा पे। सही है, तो जो है वो ये हीमोफीलिया का वो है। So with this we finish our today's session and अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हेमेटोलॉजी मॉड्यूल कंप्लीट हो गया और we have actually covered 100 CME hours today of our older batch and इंशाल्लाह जो नया बैच हमारा आएगा उसके साथ भी हम जो है वो ये सारे remaining 20 modules करेंगे and it was an amazing session today. I think interaction आप लोगों का बहुत जबरदस्त था. I see the participants going up to 70 participants and mashallah we were able to interact with each one of you. I hope so. कुछ लोग I'm sure खामोश बैठे हुए होंगे और कोई सवाल है आपको regarding the course. I think कि जो हमारे older participants हैं, if they want they can disconnect. जो लोग सवाल मजीद करना चाहते हैं, कोई MCPS के हवाले से, MRCGP के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, कोर्स के हवाले से, नायाब प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग आप लोग सबको मिल जाती है, वो लिंक आपको मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डिंग जब चाहो उसको. So Faiza, amazing. Zahida, thank you for being there. I think you're a new student. Maria, I think you're a new student. Good to have you. Majbeen, thank you.